I welcome everyone, and today, me and my entire team, we are sitting here, and we are having a panel discussion here, an introductory session for post-gate counseling activities, guidance activities. As you people are already aware, that Yourpedia is the only authentic and exhaustive platform which gives so extensive post-gate counseling, guidance to you, and we are the, I think, probably the only one who charge for this module. Now, postgrad counseling है क्या, इसका मीनिंग क्या है, what is this module all about? Me and my mentors are going to discuss that in detail, and my request to you is listen to this in totality. अगर आपका सभी टाइम नहीं है तो वीडियो बंद करके दोबारा वापस आओ और उसको डिटेल में सुनो, because unless until you listen to it, you will not get what is the idea for this. Before I go for and I discuss with each mentor, before I go for it, I'll introduce my entire team to all of you, and then we start it. So I start from Gurinder sir. So Hello. Gurinder sir is the project entire project guide for this entire project. He is handling this entire project of Postgate, and not only from this year, from 2020 when we started it, and before that also when we were not charging but we were having Postgate counseling. Then Kailash sir is heading this electronics electrical entire wing, and he is mentoring this again from the very beginning. He is there. Kavita ma'am is now the known face in foreign admissions for premium module. That simply means the certain admission module, and this year Kavita ma'am, you are also doing it for Indian universities, IITs. Geeta is the new face and the new mentor with us for humanities, and that is a new component we are adding this year. So Geeta will be telling more about that. Manish sir is mechanical engineering domain. So mechanical का बहुत बड़ा एक domain होता है. मैं भी मनीष सर के साथ मिलके mechanical में we will be talking about. Tyagi sir does not need any kind of introduction, I suppose. Among all of us, he is the only person who does not require any introduction. He is the known face and a very loving mentor among the students, and he is the main pillar of postgrad counseling, if I must say, because from the very beginning, Tyagi sir has given a lot of his inputs into this module, and it has been evolved with his lot of effort and hard work. So Priyanka is a young face with us, civil engineer, very capable and talented individual, and Priyanka has many things to offer, and she herself has traveled all this entire journey of Postgate, and she has extensive information about this. Now Mukesh sir, again from the very beginning, Mukesh sir is helping students from computer science, and computer science ka this Postgate activities, and computer science is a little different branch also with special requirements and special kind of things. So Mukesh sir will be telling us more about that. Ishita is I'll say admission manager for this, and she is the grievance redressal point of contact for students, and Ishita is the main executive, and she and her team will be handling this entire thing, and sort of buffer, sort of bridge between the mentors and students, and so many other implementation things will be done by Ishita. So welcome all of you friends, and now I go one by one and we start this entire discussion. I start first with Gurinder sir. So Gurinder sir, a very simple question. You must be knowing we evolved this module over the period of time, and last year and this year we are seeing that lot of people are coming on channels and they are displaying their videos. They are telling postgrad counseling में कैसे करना है, क्या करना है. Not only that, Yourpedia, despite of the fact that we make 98-99% selections जो हमारे पास आता है वो select होता है IITs में, and despite of that we have lot of critics, and people criticize us for two reasons. Number one, postgrad counseling आप इसको पेड मॉड्यूल क्यों बना रखा है, हम तो फ्री देते हैं, आपने इसको पेड बना रखा है. नंबर टू, आप इतना ज्यादा चार्ज कर लेते हैं, 4,500 5,000 रुपीज इतना ज्यादा चार्ज कर लेते हैं. इन दो का क्या आंसर है आपके पास गुरिंदर सर? थैंक यू सर. दो क्वेश्चन है सर कि पहला तो क्वेश्चन इसमें ये है कि हमने इवॉल्व कैसे किया सर ये मॉड्यूल को. Although Yourpedia's platform we started in 2017, and in the early years we started this postgrad counseling free sir, and from there we gained the experience, and then we started it to be paid because बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स में आने लग गए थे, तो मेंटर के कुछ चार्जेस होते तो हमने उसको पेड करना स्टार्ट किया. मैं ये बोलूंगा कि 2017 वी स्टार्टेड Yourpedia, लेकिन उससे पहले हमारा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म होता था, और उसमें भी हमने बहुत स्टूडेंट्स को जो है मेंटरिंग किया है, गाइडेंस किया है गेट एग्जाम के बाद. इसमें हर आईआईटी और एनआईटीज में पब्लिक सेक्टर के लिए जीडी जीटी इंटरव्यू सेशन उस टाइम पे भी होते थे, कुछ वीडियोस हमने उसमें डाला भी है. तो मेरा मानना ये है सर, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले ना आपको उसको एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जब हम पेड की बात करते हैं.
अब अगर हम बात करें कि जैसे आपने बोला कि कुछ फ्री क्लेम करते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो मैं देख रहा हूँ पिछले हम लोग 1-2 साल से देख रहे हैं कि जो क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग आपको फ्री प्रोवाइड करेंगे। अब मैं उसको हम लोग क्यों चार्ज कर रहे हैं या वो फ्री क्यों क्लेम कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन सिंपल सा ये है कि हमें पता है कि क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीजों का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है। ये 4 से 5 महीने का प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हमें कवर करने होते हैं। तो मे बी जब उनको ये चीज के बारे में पता लग जाएगा कि एक्चुअल में पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग है क्या, स्टूडेंट्स के लिए भी जिसके लिए हमने रखा है कि पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग क्या चीज है, उसके लिए हम लोग कोई सेशन कर रहे हैं, और उनके लिए भी जो फ्री क्लेम कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि शायद, या बच्चों को भी ये लगता है शायद कि पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग वहीं तक लिमिटेड है कि जिसमें ये बताना कि सर मेरे ये गेट स्कोर है, ओनली द गेट स्कोर, नॉट द सीजीपीए, नॉट द कैटेगरी, ओनली गेट स्कोर के बेस में इनको बता दीजिए कि क्या मिल जाएगा। मेरा मानना है इट इज नॉट अबाउट कि अच्छा क्या मिल जाएगा, वो भी डिपेंड करेगा कितना गेट स्कोर है उसके बेस पे। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर किसी का तो गेट स्कोर हायर साइड पे है, तो हायर साइड पे उसके लिए चैलेंजेस कुछ डिफरेंट है। लोअर गेट स्कोर है या गेट क्वालिफाई नहीं हो रहा, हम तो हर डोमेन को कैटर कर रहे हैं। तो पोस्ट गेट काउंसलिंग जो हम कवर करते हैं उसमें वो सारा एक्सटेंसिव है, सारे हेड्स उसमें कवर होते हैं, सारे टाइप ऑफ स्टूडेंट उसमें कवर होते हैं, पहला चीज। दूसरा, जैसे हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं सर, और ये जैसे मैंने बताया ये स्टार्ट होगा अभी फरवरी एंड में हम स्टार्ट करेंगे, और अगस्त में टिल द एडमिशन, नॉट टिल द एडमिशन, उसके बाद का जो हमें क्वेरीज भी आता रहता है कि सर रिफंड कब आएगा, फॉर एग्जांपल सीसीएमटी से, या मेरा सर एडमिशन ये हो गया, डॉक्यूमेंट रिलेटेड इश्यूज, तो ये पूरा इस साल के एंड तक चीजें चलती रहती हैं। कुछ कंपोनेंट की मैं बात करता हूं कि जिसके बिना ये पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग अधूरी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल द वेरी फर्स्ट स्टेप कि आपको अप्लाई किस बेस पे करना चाहिए, उसके लिए आपकी 3 चीजें मैटर करती हैं, आपके क्रेडेंशियल्स, योर गेट स्कोर, योर सीजीपीए एंड कैटेगरी। स्टूडेंट को अभी तक यही नहीं आइडिया कि सर सीजीपीए का भी बेनिफिट लिया जा सकता है इसमें, वो कुछ भी आइडिया नहीं है उसको, बच्चे को। तो उसके बेस पे उसके बाद फिर क्या कोर्सेज हैं, कहाँ पे, अच्छा कहाँ अप्लाई करना चाहिए, उससे पहले सर एक पॉइंट आता है कि वो एलिजिबल कहाँ पे है। बीइंग द मैकेनिकल इंजीनियर, मैं आईआईटी कानपुर में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं एलिजिबल कहाँ पे अप्लाई करने के लिए, उसको पता ही नहीं होता इस चीज का। फिर एग्जैक्टली उसके क्रेडेंशियल की बेस पे कहां अप्लाई करना है, अप्लाई करने के टाइम पे सर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का रिक्वायरमेंट, रिसर्च प्रपोजल्स का रिक्वायरमेंट, फिर जब उसको कॉल आता है कुछ जगह पे रिटर्न होता है तो रिटर्न के लिए गाइडेंस, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू को अगर आप निकाल दोगे इस कंपनी से, ये तो पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग टोटली फेलियर हो जाएगा इस चीज के लिए। इंटरव्यू हो गया, फिर उसके बाद इंटरव्यू के बाद जब फाइनल काउंसलिंग स्टार्ट होता है सीसीएमटी पोर्टल पे या सीओपी पोर्टल पे, तो क्रूशियल डिसीजंस लेने होते हैं कि सर ये दिख रहा है अब क्या करें, नेक्स्ट राउंड में जाएं ना जाएं, इसको सिलेक्ट कर लें। तो ये छोटे छोटे बहुत कंपोनेंट्स हैं। इन द एंड सर मेरे पास 4 सिलेक्शन आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, सर इन चारों में से कौन सा बेस्ट है, मेरे को कहां पे ज्वाइन करना चाहिए। तो एक पूरा प्रोसीजर है। इसके अलावा जो योरपीडिया प्लेटफॉर्म जो करता है कि हम लोग इंटरेक्ट करवाते हैं आप लोगों को आईआईटी के प्रोफेसर से, तो तुम डायरेक्टली उनके साथ बात कर सकते हो, अपनी क्वेरीज ले सकते हो कि सर आपके डिपार्टमेंट के लिए मेरे को इंटरव्यू में क्या क्वेरीज हैं, क्या प्रिपेयर करके जाना चाहिए रिटर्न के लिए, वो डायरेक्टली आईआईटी के प्रोफेसर आपको बता रहा है। और नॉट ओनली आईआईटी प्रोफेसर, जो स्टूडेंट्स हमारे पिछली बार गए होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, उनके साथ भी इंटरेक्शन करवाना। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला स्टूडेंट को कि आप एक काम करिए कि इस आईआईटी पर्टिकुलर आईआईटी में अर्थ साइंस में अप्लाई कर लिया। अब आपका क्वेरी सिंपल सा आएगा, सर अर्थ साइंस में क्यों ज्वाइन करूं, क्या क्या वहां पे मेरे को स्टडीज होगा, सर मेरे को वहां पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसके बाद का करियर क्या है। मे बी हम लोग आपको बताएंगे क्योंकि हमने किस पेज पे बताया, क्योंकि स्टूडेंट हमने भेजे उसमें हमें फीडबैक दिया है। लेकिन हियर व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग उसको कनेक्ट करवा रहे हैं डायरेक्टली सभी स्टूडेंट्स के साथ जो वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, और इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन या टेक्निकल डोमेन जितना भी कंपोनेंट्स आते हैं सर वो सारे के सारे उसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो आपके क्वेश्चन का सेकंड आंसर, चार्ज क्यों कर रहे हैं, मे बी शायद अभी तक बच्चों को पता लग गया होगा कि इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, इतना सारा इसमें सर्विसेज आएंगी, तो ऑब्वियसली उसके लिए पूरा टीम है, ये पूरा टीम बैठा है, तो हमें सिस्टम रन करने के लिए चार्जेस तो होता है, और ये पूरा सारा सर्विस सर उसी के बेस पे है सारा। Wonderful, wonderful. So let me summarize now what Gurinder sir has said, and what is the actual meaning of this, why it is paid, and what are the main components. So friends, it is not that you will tell the gate score और उसके बेस पे कोई आपको बता देगा कि यहाँ एडमिशन हो जाएगा. It is not that simple. It is like gate के साथ साथ तुम्हारा CGPA, तुम्हारा कैटेगरी, वो सारा मैटर करता है, and the mentors are going to ask you all these things. उसके बेस पे it is not the question of taking admission. I tell you honestly one thing, अगर आप थोड़ा स्मार्ट वे में प्रोसीड करो और अच्छी जगह एडमिशन ले लो, तो वो इट विल क्रिएट अ बिग डिफरेंस इन योर करियर लेटर ऑन. Think of you get a new IIT and if you get an old IIT, it makes a big difference. You get IIT Tirupati and you get IIT Madras, it makes a big difference. And that is where the mentors step in. That is where they advise you. And yes, 2017, 18, 19, it was all we were mentoring students, and 19, 20 onward we started getting paid consultancy, and it's a true value for your money. And you students need to understand, not only for your PDA consultancy, बाद में जिन स्टूडेंट्स का गेट नहीं है या जिनका गेट्स को बहुत कम है,
हम उनको बोलेंगे कि वो कुछ आईआईटीज में सेल्फ स्पॉन्सर्ड में एडमिशन ले सकते हैं, या मे बी जर्मनी में एडमिशन ले सकते हैं, या अब्रॉड भी जा सकते हैं, बिकॉज दिस टाइम पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग वी आर एडिंग फॉरेन यूनिवर्सिटीज, and then you are supposed to spend 25 lakh rupees. Then you should not say it is so costly. Why? Because it is a return on investment. 25 लाख अगर तुम खर्च कर रहे हो तो तुम्हें जॉब भी बहुत ज्यादा मिल रहा है. The other day somebody was telling me that IIMs are charging huge. I mean बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं. IIT रुड़की का फीस 15-20 लाख से ऊपर है अभी. So you need to see that in totality. And you need to be, you should not be penny wise and pound foolish. You should not be like that. I mean, you should spend the money where it gives you return. So that is how it all goes. Now I come to Kailash sir. Kailash sir, you have very thorough and vast experience in post-grad counseling. सर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, आप वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के मेन मेंटरिंग कर रहे हैं, लेकिन आपसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि ये है क्या सर पोस्ट-ग्रेड काउंसलिंग, स्टूडेंट को ये समझाओ. राइट सर, थैंक्स अ लॉट सर. सबसे पहला तो मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड इंफॉर्मेशन. So what Yourpedia is doing, that is a post-gate guidance. Yes. And what other platform are doing, they are post-gate information. Yes, very true. See, when we talk about guidance, there is a two-way communication, right? And when you're spreading the information, that is a one-way communication. By coming on the platform, you're just distributing the information. So I believe when it comes to guidance, you need to be instructed. तो वहाँ पे efforts लगते हैं, input लगते हैं, तो obviously it will charge something about, right? And post-gate guidance, authentically only Yourpedia education is doing. Rest all whatever information student are getting, they are doing the post-gate information. Be very clear about this. And why I started my discussion this way, there is one consequences which one student faced last year. So we know, as Gurinder sir quoted right now, अभी सर ने बताया कि गाइडेंस में क्या क्या इन्वॉल्व है. इतने सारे IITs हैं, IITs में अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स है, कॉप का पोर्टल आपको खेलना है, CCMT आपको NIT के लिए करना है, और IITs के अंदर इतनी सारी स्कॉलरशिप है. एक तो MHRD की स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप है, आपको HVA स्कॉलरशिप IIT दिल्ली में मिलता है, आपको अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड हो, आप लद्दाख से आ रहे हो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आ रहे हो, आपका स्टेट गवर्नमेंट आपको फंडिंग देता है, तो बहुत सारे फैक्टर पिक्चर में आते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. बहुत सारे मैं स्टूडेंट को देखता हूँ, वो बहुत सारे कॉलेज प्रेडिक्टर बने हैं कि गेट्स को डालो, आपको कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी, यहाँ अप्लाई करो. दैट इज अ स्टैटिक मोड. तो वो आपको खाली एक टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन देगा. और उसी का विक्टिम लास्ट ईयर एक स्टूडेंट हुआ, तो उसने 4th-5th कॉप के राउंड में IIT गांधीनगर ले लिया. तो बाद में वो मुझे कॉल करके कहता है कि सर क्या कोई ऐसा प्रोसीजर है, मैं कॉप वालों को मेल लिखूं कि मैं आगे भी जाना चाहता हूं. मैंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मेरे दोस्त को 7वीं पे IIT खड़गपुर मिला है, और वो भी अच्छी ब्रांच मिली है. सो दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन जो हम ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर देते हैं प्लेटफॉर्म पे. जब आप गाइडेंस करते हो, गाइडेंस मींस यू आर एंड टू एंड कनेक्टेड विद स्टूडेंट. आज तुझे क्या अपडेट आया, वो मेंटर्स को शेयर करेगा, अपने पीयर्स को शेयर करेगा. तो मेंटर्स के साथ पीयर्स भी अब अवेयर हो चुके होते हैं, हम उनको इतना गाइड कर चुके होते हैं कि हाँ इस पे क्या हो रहा, आगे मैं क्या प्रेडिक्ट करूंगा. तो सबसे पहला चीज तो ये कि दिस इज द USP and this is the different point which we will be covering here. दूसरा चीज अब क्या है, हर एक ब्रांच का बच्चा आता है. मैं पे सभी ब्रांचेस की बात करूंगा. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस दो ऐसी ब्रांचेस है जिसमें मैं हमेशा स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं 2 साल से ज्यादा का ड्रॉप मत लो, क्योंकि ये दो ब्रांचेस ऐसी है जिसपे टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है. अगर आप 2 साल में गेट में थोड़ा लो स्कोर भी आ रहा है, आई कैन टेल यू one student 368 gate score sitting in IIT Kharagpur in Vision Intelligent System. और तो उसके पास कैटेगरी था, वहीं पे 500 सेम कैटेगरी में बच्चा IIT इंदौर बैठा, IIT भुवनेश्वर बैठा है. तो ये डिफरेंस है, ये वो लैक ऑफ गाइडेंस है जो आपको नहीं मिल रहा है कि कहाँ पे जाना है, कब तक आपको जाना है. तो जो योरपीडिया की टीम है उसके पास एक डाटा सेट है, कनेक्शंस है, हमारे जूनियर्स है, हमारे स्टूडेंट्स है, फैकल्टी के कनेक्शंस है. तो वो सारा एक जो कंक्लूडिव हम जो आपको एक मेंटरशिप देंगे वो उसके बेस्ड पे होगी कि रिस्पेक्टिव जो भी आपका गेट स्कोर है वो आप एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो. एंड ट्रस्ट मी, वी हैव 23+ IITs, 30+ NITs. अगर आप इसमें पोस्ट गेट की सीट्स भी देखोगे, दे बिकम अ ह्यूज नंबर. बट पॉइंट इज दैट हम इसके बारे में अवेयर नहीं है. सिमिलरली बात आती है MS की. MS के लिए बच्चे नहीं जाना चाहते हैं. अभी मैं बच्चों से बात कर रहा था, IIT बॉम्बे में MS एक बहुत प्रेस्टिजियस कोर्स है. तो मेरा स्टूडेंट एक तन्मय है, आई एम कोटिंग द नेम आल्सो, ही टोल्ड मी सर अगर IIT बॉम्बे किसी को आना है, MS के लिए आए, कैंपस को 3 साल के लिए एंजॉय करे, उसी कंपनी में बैठ रहे हो, वही तुम 3 साल के लिए पढ़ रहे हो, वही 2 साल के लिए एमटेक वाला पढ़ रहा, तो नॉलेज देख लो किसके पास जाता है. और 1000 रुपए स्टाइपेंड हर साल इंक्रीज होता है MS वाले का. तो आई एम कोटिंग कि देयर आर लॉट ऑफ हिडन थिंग्स जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाता है. और वो जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ले लेता है कि ही फील्स लेटर, ही रिग्रेट लेटर कि यार मैं शायद अभी उस कैंपस में बैठा होता, मैं यहाँ बैठा हूँ. ऑल्सो
ऑल कैंपस आर डूइंग गुड, न्यू कैंपस अच्छा कर रहे सही हैं, है। और तो अच्छा कर ही रहे हैं। सही है। दूसरा चीज क्या है, बहुत सारे आईआईटीज में बच्चों को समझना होगा, ये मैं बच्चों के लिए बता रहा हूँ, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आप सिर्फ ब्रांच नाम के साथ नहीं जा सकते हो। अब वीएलएसए की बात करते हो, कहीं पे वीएलएसआई है, कहीं पे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कहीं पे एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो अलग अलग नाम है। आपको अंदर का कोर्स स्ट्रक्चर देखना होगा, वो आपको मेंटर बताएंगे। अब जैसे आईआईटी खड़गपुर ने एक विजन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम किया, वहां पे डीप लर्निंग है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन है, एआई है, एमएल है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा वहां पे जाता है जिसको एआई पढ़ना है, जिसको बेसिकली मशीन लर्निंग में जाना है। वहां पे पहले सिग्नल प्रोसेसिंग होता था, अब आईआईटीज ने सिग्नल प्रोसेसिंग प्लस मशीन लर्निंग किया, बिकॉज आईआईटी अंडरस्टूड that there is a need of reinvention of the course curriculum। तो वही चीजें हम बच्चे को बताते हैं। एक मैं इसमें और फैक्टर बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों को पोस्ट ग्रेड गाइडेंस हाई रैंक वालों को कैसे हेल्प करता है वो मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ। लो रैंक के तो हमने बहुत बेनिफिट बता दिए। लेट अस सपोज किसी बच्चे का रैंक 100 रैंक है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि सर मुझे आईआईटी बॉम्बे में वीएलएसआई में जाना है, तो उसको हम कनेक्ट कराते हैं वहां पे जो हमारा स्टूडेंट पढ़ रहा है, और उसको बोलते हैं कि अगले 4 महीने तूने कैसे यूटिलाइज करने, क्या क्या तूने कोर्सेज पढ़ने, सो दैट तू अपना जो बीटेक से एमटेक का ट्रांजिशन है बहुत स्मूथली कर पाए। बिकॉज एमटेक का पूरा करिकुलम एक रोलर कोस्टर राइड होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर आप उसको बीटेक के पेस पे करोगे नहीं कर पाओगे। तो ये सारी फीचर इसमें इंक्लूडेड है, प्लस इंटरव्यूज। ऑब्वियसली जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इंटरव्यू प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, खासकर अगर आपका लो गेट स्कोर है। नाउ स्टूडेंट नीड टू अंडरस्टैंड कि आईआईटी इंटरव्यू को क्यों डाल रहा है। उसको भी पता है ऑन एनी पर्टिकुलर डे किसी का भी पेपर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लेट अस जज हिम ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज ही होल्ड। तो उसके लिए 10-15 मिनट का इंटरेक्शन रखते हैं। और इंटरव्यू में कभी भी हम हर बार बच्चे को बताते हैं कि लेंथी मत पढ़ो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ो। उसको पता है कि इफ ही इज अंडरस्टैंडिंग माय बेसिक थिंग्स, इसको मैं एडवांस चीजें रियलाइज करवा दूंगा। तो ये सारी चीजें जो हम इसमें कवर करते हैं, अल्टीमेटली कंक्लूडिंग कि अगर आपका बिल्कुल लो गेट स्कोर है, डोंट फील डिप्रेस्ड, डोंट बी इन द स्टेट ऑफ डायलेमा। एक हमने यूनिवर्सल थ्योरी बना देना बीआरपीडी एजुकेशन वालों ने कि 4 महीने के लिए अपना फुल एफर्ट डालो। 4 महीने के बाद आपके पास कहीं ना कहीं किसी न किसी आईआईटी एनआईटी का टिकट होगा। रिसेंटली आई वाज टॉकिंग अबाउट वन गर्ल्स, ओके, 373 और 363 गेट स्कोर जनरल कैटेगरी, सिटिंग इन एनआईटी राउरकेला, वो भी स्पॉट राउंड तक जाके उसने लास्ट तक वेट किया है। और शी वाज टेलिंग मी, सर वो तो मैंने मिस्टेकनली की इसलिए ले लिया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। अगर कोई ऐसा बच्चा होता जिसका कोर ब्रांच में इंटरेस्ट ना होता तो आगे वेट करता, उसको सूरत कलर एक्स्ट्रा भी मिल जाता है। तो कॉप में कहां तक जाना है, सीसीएमटी में कैसे सिलेक्ट करना है। अब एनआईटीज है, अलग अलग एनआईटीज का इंटर्नशिप का अलग अलग स्ट्रक्चर रहता है, कहीं पे 11 महीने की, कहीं पे 6 महीने की, 3 महीने की। तो एनआईटी जब आपको चूज करना है कौन कौन से फैक्टर के बेसिस पे इंटर्नशिप कहां मिलती है, प्लेसमेंट कहां मिलती है, कौन कौन से कोर्सेज है, वो सारा इसमें बच्चों को दिया जाएगा कि जो भी आपको होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन होगी वो गाइडेंस की फॉर्म में दी जाएगी, नॉट लाइक द ओपन प्लेटफॉर्म। हमने एक पीडीएफ बनाया, वहां पे लिस्ट बता दिया कि हाँ ये यहाँ पे अप्लाई करो, ये अप्लाई करो। अप्लाई करना बहुत इजी है, बट अप्लाई करने से आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे उसको। आपको बेसिकली पूरा इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जिसमें 3-4 महीने लग जाते हैं। सो वंडरफुली एक्सप्लेन कैलाश सर। आपने जो बताया उसको मैं समराइज करूंगा, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे। पिछले साल आपने एडवाइस किया और आपने इसको मेंटरिंग भी किया कि हम पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग में अब्रॉड फॉरेन यूनिवर्सिटीज को डाल देते हैं, और स्टूडेंट के पास अपॉर्चुनिटी, जैसे हम जानते हैं गेट के थ्रू भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख, RWTH, नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, ननयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, क्रैनफील्ड भी आया था, अब टोरंटो भी मैम बता रहे थे। सो ये कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए भी बच्चा कर सकता है, एंड व्हाई नॉट अदर्स। जर्मनी वगैरह में तो पब्लिक वो तो होता था फ्री। आपने उसको बोला, मेरे ख्याल से 30-40 बच्चे आए भी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर ये जो फॉरेन का इस बार हम एक्सटेंसिवली करने वाले हैं, तो क्यों हम पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग के फॉरेन का भी कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन। सर इसका मैं आपको एक ब्रीफ आंसर देता हूँ। आपने बताया हमने स्टार्ट किया, हमने इनिशिएट करा, हमें लगा कि स्टूडेंट को पैरेलली मेंटर करते हैं, हमें इनिशिएट किया, हमें उसका आउटकम मिले। देयर इज वन स्टूडेंट, मल्टीपल स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का मैं नाम ले लेता हूँ, मोहित। ही इज इनटू आई गेस एनआईटी सूरत का, बहुत एवरेज गेट स्कोर, वहां पे अपना मास्टर कर रहा है। रिसेंटली ही गॉट 3 MS ऑफर एरिजोना से और पर्डू से, और वन आई एम फॉरगेटिंग एक तीसरा यूनिवर्सिटी है। अब ये फर्स्ट सेमेस्टर में वहां पे है। तो ये उन जो हमारे जो प्रोडक्ट है उनका ये आउटकम है। देखो अगर बच्चा इंडिया में अप्लाई कर रहा है और उसका मन है कि मेरे को अब्रॉड भी जाना है, वी इंडियंस आर वेरी इनसिक्योर टू बी ऑनेस्ट इन एनी टर्म। हमें लगता है कि अगर हम 1-1.5 महीना फ्री बैठ के तो हम कुछ वेस्ट कर रहे हैं, जो कि होना भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक इंडिया में एडमिशन ले लेते हैं, बट हमारी एस्पिरेशन बाहर जाने की है। ठीक है, आप इंडिया में एडमिशन लो, आप 1 सेमेस्टर बिताओ यहाँ पे, प्रोफेसर को जानो, थोड़ा सा टेस्ट लो, रिसर्च होती क्या है। और मीनवाइल आपका पर्डू में हो जाता है, एरिजोना में हो जाता है, वो आपके ऊपर है। यू वांट टू गो देयर, आप यहाँ
में मास्टर कंप्लीट करके पीएचडी के लिए जाना चाहते जाओ। ये एक स्टूडेंट को ड्रीम करना पड़ेगा कि यार 4000 रैंक पे अगर आपको एरिजोना से भी ऑफर मिल रहा है, पर्ड्यू से भी मिल रहा है, तो उससे बेटर तो कुछ नहीं हो सकता। तो दिस ईयर वी आर प्लानिंग कि जर्मनी, एनटीयू, एनयूएस के साथ हम बाकी जो भी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज है, वो यूएसए में है, आयरलैंड में है, यूके में है, कनाडा में है, उन सबको कवर करेंगे और स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि ओके, रीजन बीइंग व्हाट आई बिलीव देयर आर मेनी स्टूडेंट जिनको लगता है कि हमारा स्कोर कम है, हमारे एकेडमिक्स कम है, बट हमारे रिसर्च पेपर बोलते हैं, हमारा पब्लिकेशन बोलता है, हमारा रिसर्च प्रोफाइल स्ट्रांग है, तो वो ग्लोबल स्टेज पे उनके लिए अपॉर्चुनिटी और ज्यादा खुल जाती है। तो वी वांटेड कि आप सब चीजों का फायदा उठाओ। अच्छा स्कोर है तो इंडिया में उठाओ, बाहर भी उठा सकते हो। अगर आपका स्कोर एवरेज है, मॉडरेट है, इंडिया में तो हमने बहुत ऑप्शन दिए है, एब्रॉड भी बहुत ऑप्शन, बिकॉज एब्रॉड के लिए सारी चीजें आपकी कंक्लूड होती है, सिर्फ आपका स्कोर नहीं होता है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द एडमिशन स्कोर प्लस इंटरव्यू, बट एब्रॉड में आपने क्या प्रोजेक्ट किए, क्या इंटर्नशिप किए, आपका क्या लीडरशिप एक्सपीरियंस है, आपने क्या इनिशिएटिव किए, कंपनी में आप काम कर रहे हो वहां पे आपने कितना रिजल्ट दिया, क्या अचीव करे, ये सारे आपकी पर्सनालिटी को बताते हैं, पोटेंशियल को बताते हैं। उस चीज को ध्यान में रखते हमने ये चीज स्टार्ट करी थी। और दूसरा चीज, इंडियन स्टूडेंट एग्जाम नहीं लिखना चाहते, और हमारा मोटिव ये रहता है इंडिया प्लस अब्रॉड में कि ऐसी जगह उसको भेजे उसको जीआरई ना लिखना पड़े, जीआरई वो लीस्ट ऑफर करे। जर्मनी और सिंगापुर में तो जीआरई का रिप्लेसमेंट गेट हो गया, बाकी जगह पे हम उसको ऐसे प्रेफर करते कि जीआरई उसको लिखना ना पड़े। IELTS is a requirement. I believe always, see all the student जो abroad का सपना भी देख रहे हैं, don't create barrier or obstacle because of the exam. They are just a requirement. They are not the process. There is a difference between the process and requirement. Assume करो आपके हाथ में ऑफर है, हमारे पास कैसे कोई बच्चे ऐसे भी हुए हैं, उनके पास ऑफर आ गया, पहले वो आइल्स लिखने के लिए मना करते थे, फिर एक महीने बाद वो सबसे ज्यादा आइल्स लिखते हैं। उनको पता है कि ऑफर मेरे हाथ में, अब आइल्स ही एक मुझे सही बताया, मतलब बिलीव करना इंपॉर्टेंट है। राइट, बिलीव करना बहुत। सर एक और चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा कैलाश सर लास्ट ईयर कि हमारे पास जो ज्यादा बच्चे फॉरेन के लिए आए थे, दे वर द स्टूडेंट्स जिनका नो गेट, बिकॉज हम नो गेट को भी देते ही हैं, तो जिनका गेट नहीं था और उनको कहीं ना कहीं लगा कि यहाँ तो होगा नहीं तो वहां चलते हैं, ज्यादा नंबर वो था। एंड बाद में हमने ऐसा कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया कि उन बच्चों को बेटर क्यूएस रैंक यूनिवर्सिटीज मिली कंपेयर टू जिनका 700-800 गेट स्कोर इंडिया में जिनको मिला है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि जो नो गेट वाले जिनका गेट बिल्कुल भी नहीं है या क्वालिफाई नहीं हुआ है, उनके लिए फॉरेन अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? सर शायद मैं बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स को या बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा वियर्ड साउंड होगा, बट आई विल सजेस्ट ऑल, गेट के साथ ऑब्सेस्ड मत हो जाओ, गेट एग्जाम के साथ। गेट इज अ एग्जाम, नेशनल एग्जाम, आप ट्राई करो, बट आपकी बेसिकली एबिलिटी, कैपेबिलिटी, आपका प्रोफाइल इससे बियॉन्ड है। अगर आपका नहीं हो रहा है तो और भी रास्ते हैं, सारी जनता गेट पे नहीं बैठेगी। सही है। ग्लोबल यूनिवर्सिटी डोंट आस्क फॉर द गेट, हमने अभी कुछ का नाम बताया, आप अपना प्रोफाइल बनाओ, आप हमारे साथ जुड़ो, मेंटर्स आपको बताएंगे आपके प्रोफाइल में क्या लगेंगे, आपको ये स्किल सीखना, आपको पाइथन सीखना, आपको मशीन लर्निंग सीखना, आपको डीप लर्निंग है, ये एल्गोरिथम सीखना है कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करें। लेट अस सपोज कोई सिविल में जा रहा स्ट्रक्चर के लिए, तो मेरे पास आता है कि सर मेरे को तो सिविल नहीं पढ़नी है, मेरे को ना बेसिकली अब टेक्नोलॉजी पढ़नी है, मैंने तो एआई, डेटा साइंस, इससे मैंने सुना है ये अच्छा करियर है, नॉलेज नहीं है बट उन्होंने सुना है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि ठीक है यार, एक डोमेन पकड़ो अपनी सिविल वाली, स्ट्रक्चर वाली, उसमें ये टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करो और प्रपोज करके कोई ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा प्रोफेसर ज्वाइन कर दो जो इन दोनों पे काम कर रहा है। आपका एस्पिरेशन भी पूरा हो गया, आपका ड्रीम है वो भी पूरा होगा, और विन विन सिचुएशन में दोनों जगह पे। तो पॉइंट इज दैट अगर आपका लो गेट स्कोर है या गेट क्वालिफाइड नहीं है, इंडिया में सेल्फ स्पॉन्सर्ड इज ऑप्शन, बट उसके अलावा इंडिया इज अ कंट्री एंड वर्ल्ड इज हैविंग अ ह्यूज नंबर ऑफ कंट्रीज, तो ऑप्शन को मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ पे 10 है तो वर्ल्ड में 1000 ऑप्शन है। सही है। तो इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट्स, कितने एफर्ट्स आप डालते हो। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल द स्टूडेंट कि गेट में लो परफॉर्मेंस को लेके ऑब्सेस्ड मत हो जाओ। यू हैव पोटेंशियल, एबिलिटी, बट पॉइंट है आप उस जोन से बाहर निकल के compete करना है, अपना प्रोफाइल बनाना है। एज ए कोटेड अर्लियर, आई एम समिंग अप, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर वाले खासकर मैं वाइजली बोलता हूँ 2 साल से ज्यादा ड्रॉप मत लो, क्योंकि इतना लैग हो जाओगे कंपटीशन में, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले जाएगी, अडेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। कैंपस में फिर आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा ऑड फील कर रहे हो, बाकी आपसे बहुत सिंक्रोनिज्म पे चल रहे हैं। आई बिलीव वंडरफुल। सो बहुत अच्छे तरीके से समराइज किया कैलाश सर। अब मैं त्यागी सर के पास जाऊंगा, लेकिन पहले मैं समरी दे दूं जो कैलाश सर ने बताया। सो द समरी इज, कैलाश सर ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपके मिस हो गए तो दोबारा वापस जाओ, सुनो, एंड दे आर वंडरफुल। एक्चुअली समरी दे रहा हूं, पहला 2-4 पॉइंट्स बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता है और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एडमिशन में जाते हो ना तो कोप राउंड्स होते हैं, सीओपी वो आपका राउंड्स होता है, और वैसे ही आपका सीसीएमटी राउंड्स होता है। आप राउंड्स में आगे जाना, रिस्क लेना
बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको थर्ड राउंड फोर्थ राउंड में आईआईटीज मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड फिर आपको सारी दुनिया डराती है एक्सेप्ट योर पीडीए मेंटर। सारे बोलते हैं आपको कि ले ले भाई, नहीं मिलेगा। एक ऐसा टाइम आता है जिसमें अगर ये छूट गया तो कुछ नहीं मिलेगा। एंड यू नो योर पीडीए मेंटर टेल यू, चिंता मत कर, चला रहा है, डोंट वरी, एंड तक चला रहा है, तेरे को आईआईटी ओल्ड आईआईटी तक पहुंचा के मानेंगे। एंड वी डोंट टेक रेकलेस डिसीजन, हम वो रेकलेस रिस्क नहीं ले रहे होते हैं, हम वेल इन्फॉर्म्ड रिस्क ले रहे होते हैं, बिकॉज हमने आपको एश्योर किया होता है, कहीं ना कहीं हमने आपको एमएस में एश्योर किया होता है या कहीं ना कहीं बिठाया होता है। एंड इवेंचुअली क्या होता है, जो सुनते चले जाते हैं उनका अगस्त 15 या अगस्त फर्स्ट वीक में उनका ओल्ड आईआईटी में जिसमें स्पॉट राउंड खुलता है उसमें एडमिशन हो जाता है, बिकॉज तब तक बाकी सब लोग एडमिशन ले चुके होते हैं। तो सर ने बोला कि अब मैं क्या करूं सर, मैं तो गांधीनगर में एडमिशन ले गया, अब तो बॉम्बे में मेरे फ्रेंड को मिल रहा है। So that situation comes, and उस टाइम पे आपको मेंटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नंबर 1। सारी दुनिया जो आपको बोलेगी, फ्रेंड्स कंपेयर करके देख लो, योर पीडीए मेंटर उल्टा बोल रहे होते हैं। सारी दुनिया बोलती है एमटेक में जाओ, हम बोल रहे होते हैं एमएस में जाओ। वी आर टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, सारी दुनिया बोल रही होती है तुम जॉब्स में घुस जाओ, हम बोलते हैं हायर एजुकेशन में चले जाओ। सो वी टेल एक्चुअली दोज थिंग्स व्हिच यू विल फील वंस यू ज्वाइन द आईआईटीज। एंड अगर तुम आईआईटी के स्टूडेंट नहीं हो, आईआईटी के बाहर बैठे हो, तो एमटेक एमएस में तुम्हें डिफरेंस होगा, लोग बोलेंगे एमटेक ज्वाइन कर लो। लेकिन जैसे तुम आईआईटी ज्वाइन करते हो, मैं जितने बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ आईआईटीज के, चाहे वो एमटेक है चाहे एमएस है, वो बोल रहे हैं एमएस इज अ वंडरफुल कोर्स, क्योंकि वहां पे तुम्हें आईआईटी में 6 महीने ज्यादा रहने को मिलता है। एंड यू नो आई हैव स्पेंट 10 years in IIT system and I am always surprised when students say नहीं सर मेरे को एमटेक करनी क्योंकि 2 साल की है, एमएस नहीं करनी 2.5 साल की है। यार आईआईटी इज अ प्लेस जहां जितना रहने को मिले रहो, बिकॉज एवरी डे यू आर गेनिंग। So 6 months more if you spend, you enhance your skill, and government of India is paying for that. So why you will not do that? So MS courses are wonderful. एक और सर ने पॉइंट बताया, गुरुन सर ने बताया, गेट स्कोर is one of the criteria. Then there are CGPA and then your category. एक और चीज जो सारी दुनिया तुम्हें बोलेगी और योर पीडिया ठोक बजा के बोलता है मत फॉलो करो, दैट इज कट ऑफ्स। जब भी कोई फॉर्म निकलता है सारी दुनिया कट ऑफ दिखाना स्टार्ट कर देती है, पिछले साल का कट ऑफ ये, इस बार का ये। योर पीडिया बोलता है जस्ट थ्रो दैट इन गार्बेज, कट ऑफ डज नॉट हैव एनी मीनिंग। और अगर उस साल ही कोई आईआईटी बोल देता है कि कट ऑफ इतनी है, हम बोलते हैं डोंट वरी, फिर भी अप्लाई कर दो। यू अंडरस्टैंड, इट विल साउंड वेरी वियर्ड टू यू कि आईआईटी बॉम्बे ने कट ऑफ दे दिया सर 750, इससे कम में वो नहीं बुलाएंगे, और आप बोल रहे अप्लाई करो। आई मीन इट, अप्लाई करो, एंड यू विल गेट द कॉल ऑल्सो। There are so many hidden things, as he said, which nobody will tell you and which are important to explore wonderful opportunities. Now coming to त्यागी सर। त्यागी सर, माहौल थोड़ा सा बहुत ही वो हो गया है, सीरियस हो गया है, so we are coming to you, थोड़ा लाइट बनाओ उसको। What is post grad counseling, जनता को बताओ सर, ये है क्या चीज? देखो क्या है, ये तो बहुत सारे हमारे कैलाश सर ने समझा दिया अच्छे तरीके से, आपने समझा दिया, उन्होंने समझा दिया, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। जिंदगी में ना मतलब हर इंसान को, बहुत सारे लोगों को ऐसा रिग्रेट होगा, बहुत सारे लोग मिलेंगे, यार मैं अगर उस टाइम पे मैं ये डिसीजन ले लेता तो ऐसा हो जाता, अगर मैं ये कर लेता तो वो हो जाता। तो 99% पब्लिक आपको मिलेगी कि जो ये रिग्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग आगे जिंदगी में अपनी रिग्रेट ना करो इस टाइम पे, ठीक है ना। उसमें ये पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता एक्चुअली। बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है स्टूडेंट्स की कि जिनको अवेयरनेस नहीं है, और है तो कॉन्फिडेंस नहीं होता उतना, या वो ट्राई नहीं करते। तो हमारी अप्रोच क्या रहती है कि पिछले सालों से हम ये काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस बहुत बच्चों से बात कर करके अलग अलग वैरायटी का हो चुका है, कि उनको हम पुश भी करते हैं कि अगर थोड़ा सा भी हमें लगता है बच्चा ढीला है ना, कि हाँ मतलब इसको कुछ मिल सकता है, तो हम पर्सनल लेवल पे उसको अपना मान के कि तू ये काम कर, एक बार हमारे कहने पे कर, ठीक है ना। और वो बच्चा कर लेता है और जिंदगी उसकी बढ़िया हो जाती है आगे। एक लड़की थी 2018 में बीटेक किया, बीटेक जिस कॉलेज में कर रही थी, मतलब वो कॉलेज बंद हो गया 3rd ईयर के बाद, ओके ठीक है ना। तो लड़की एकदम डिमोटिवेट, फिर कहीं कॉलेज वालों ने उसको किसी दूसरे कॉलेज में बीटेक जैसे जैसे पास हुआ, बीटेक के बाद उसने गेट का एग्जाम दिया, ठीक है। और उसके बाद एग्जाम में उसका वही 400-500 के बीच में रेंज आया, और वो बैठ गई, परेशान हो गई, डिप्रेस हो गई कि कुछ नहीं होगा। फिर वो घर पे तैयारी करती रही, मतलब फिर क्या हुआ कि पेपर उसने मतलब ट्राई करती रही, पेपर फिर दिया, एक बार उसका 500 कुछ स्कोर आ गया, 500 के आसपास, ठीक है। अब कहीं से उसको पता चल गया, परेशान तो थी वो जिंदगी में कि अब तो 4 साल हो गए, ठीक है, कि अब कुछ होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं, कोई वो नहीं थी उसको, मतलब बल्कि घर वाले तो की शादी कर देते हैं जल्दी से, उस तरह की प्लानिंग करने लगे थे। उसने बस कहीं से उसको पता चला कि योर पीडिया की काउंसलिंग होती है, उसने हिम्मत करके वो ये काम उसने अच्छा किया, उसकी शादी रुकवा दी सर। हाँ, उसने मॉड्यूल ज्वाइन कर लिया पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग का, ठीक है, और वो मेरे अंडर में आ गई। पहले दिन मेरे से बात हुई उसकी, तो उसके बाद फर्स्ट डे मेरे से बात हुई, उसने कंप्लेन करी
फोन करके कि मुझे सब कुछ समझ में नहीं आया, मेरा मेंटर चेंज करो, ठीक है। अगले दिन मैंने उससे फिर बात करी, उसको मैंने सही तरीके से पूरा समझाया, जो पहले दिन नहीं किया हाँ, था। ठीक है ना। फिर वो लड़की को समझ में आ गया। उसके बाद मैंने उसको कहा कि जो जो बोलता रहा वो करती रहे, ठीक है। अच्छा, IIT जम्मू के फॉर्म निकले, मैंने उसको कहा तो इस बारी इसमें यहाँ पे इस बारी ब्रांच में पढ़ दे, कम्युनिकेशन ब्रांच है। तो उसका मतलब ऐसी था कि मतलब कि जम्मू कौन जाएगा, ठीक है ना। मैंने फॉर्म भरवाया जबरदस्ती उसको समझा के, फॉर्म भर दिया, इंटरव्यू की कॉल आ गई, बोलती सर पेरेंट्स नहीं भेजेंगे वहां, तो जम्मू में तो पता नहीं कैसा माहौल है, सिक्योरिटी का इशू है, ये वहां नहीं भेजेंगे मेरे घर वाले। मैंने कहा घर वाले बाद में देखेंगे, पहले तो एक बार हिम्मत करके मतलब समझा उनको, इंटरव्यू देने चली जा। कॉल आ गई उसकी इंटरव्यू की, जैसे तैसे करके उसके पापा का फोन आया कि वहां कोई दिक्कत तो नहीं है जी, आपकी गारंटी है। मैंने कहा मेरी गारंटी है, ये समझे। चली गई वो वहां पे, सिलेक्शन हो गया। उसके बाद उसको ब्रांच मिल गई कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग। फिर बोलती सर इसमें मतलब कि कुछ होगा नहीं होगा, पता नहीं प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, मुझे टीचिंग में जाना पड़ेगा क्या आगे। तो मैंने कहा कि तू ले ले अभी वहां पे, क्योंकि जो प्रोफेसर 2-3 ऐसे थे बहुत अच्छा काम कर रहे थे उसमें कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो फिर उसके घर से कम 10 लोगों के फोन आए कि सर ये मतलब कि सही है, वहां पे सेफ है ये। मैंने कहा चले जाओ, कुछ उसको समझाया बहुत मैंने कि एक बार हिम्मत करके चले जाए, पढ़ ले वहां पे, अच्छा करियर बनेगा। करते करते उसने अल्टीमेटली ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। और उसको मैंने मना कर दिया कि तो और कहीं कुछ मत कर, उसको एक जगह जा, बस ज्यादा फॉर्म नहीं भरवाएगा। चलेगी, पहला बैच था उनका, ठीक है ना, कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग का। टेलकॉम कंपनी आई, 35 लाख का पैकेज, ठीक है ना। 1 साल कंप्लीट होते ही लग गया उसका पहले अटेम्प्ट में। और उस दौरान बीच में उसने कई बार बात की, मतलब हर उसमें गाइडेंस लेती थी। तो ये फायदा हुआ। अब वो मानती है कि सर अगर मैं नहीं लेती ये गाइड मतलब काउंसलिंग, तो पता नहीं, अब तो शादी वादी होके सब कुछ मतलब एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती है, और अब वो कंपनी में आराम से जॉब कर रही है बढ़िया। ऐसे इतने एग्जाम्पल आ चुके हैं ना हमारे पास 4-5 साल में। मतलब ये कम से कम 10 घंटे चाहिए मुझे समझाने के लिए कि जो बच्चे उन्हें उम्मीद नहीं होती है कि अच्छा ऐसा भी हो जाएगा, उनको जबरदस्ती समझा के कि ये कर, ठीक है। और दूसरा फिर इसके अंदर जो एक्टिविटीज है ना, ये एक दिन का काम नहीं है कि भाई आज हमने बच्चे ने ज्वाइन कर लिया और हमने उसको 2-3 PDF भेज दी और काम खत्म हो गया। ये डेली का काम है, 3 महीने डेली, दिन में 10 दिक्कतें आएंगी। अब तुम किसी रिश्तेदार को, मान ले तुम्हारा कहीं है रिश्तेदार भी, उसे एक बार फोन कर लोगे, 2 बार कर लोगे, तीसरी बार फोन नहीं उठाएगा वो डाउट क्लियर करने के लिए। यहाँ तुम हमें 10 बार फोन करोगे, ठीक है ना, तब भी हम दोबारा फोन उठाएंगे। रात के 12-12 बजे फोन बच्चे करते हैं, तब भी हम उनकी मतलब रिप्लाई करते हैं। घर में भी झगड़े हो जाते हैं कई बार, ठीक है ना। तो ये जो छोटी छोटी स्टेज में हमें डाउट्स आते हैं ना कि अच्छा ये हो गया, मतलब तुरंत डाउट आया बच्चा एकदम भेजता है। तो इतने सारे टीम मेंबर्स हैं जो एक्सपीरियंस्ड है, प्रोफेशनल्स हैं, मतलब इस चीज में एक्सपर्ट हो चुके हैं, वो उनकी क्वेरी को सबको क्लियर करते हैं। फिर दूसरा, IIT के जो प्रोफेसर होते हैं वो भी ऐसा नहीं कि किसी भी इंस्टीट्यूट ने उनको बुला लिया और वो आ गए, ठीक है ना। वो भी जानते हैं कि हम लोग मतलब सही डायरेक्शन में चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी इन्विटेशन पे IIT के प्रोफेसर, किसी भी IIT के, तुरंत रेडी हो जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों का, जैसे मान लें कि इसी में 200 बच्चे हमारे पास, उनका डायरेक्ट जूम सेशन हम कराते हैं। आपस में बात करो, उनको क्या चाहिए, उनको कैसा बच्चा चाहिए, इंटरव्यू में उनको क्या रिक्वायरमेंट है, वो प्रोफेसर से डायरेक्ट डाउट पूछो आप, जो आपको कहीं और मौका नहीं मिलेगा। और अलग अलग IITs के बहुत प्रोफेसर हमारे सामने मतलब डायरेक्टली बच्चों से जूम सेशन करते हैं, जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सही है। उसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, अब मान लिया आपको IIT कानपुर मिल गया, ठीक है, आप जिस दिन काउंसलिंग होगी बच्चा उस दिन कहेगा सर IIT कानपुर में बात करा दो, हम नहीं कराएंगे, मना कर देंगे, ठीक है ना। हम पहले उसको हमें पता है कहाँ कहाँ पे फॉर्म भरवाना है, फॉर्म भरवा दिया, इंटरव्यू की कॉल आ गई। फिर जब इंटरव्यू की कॉल आ गई तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए जो क्वेश्चंस का सेट है, पिछले 4-5 साल से जो हमने बच्चों से फीडबैक लिया है, तो हमें पता है ना कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम उसको बताएंगे कि ये चीज अपनी रेडी कर, बच्चा रेडी करेगा। इंटरव्यू क्लियर हो गया, अब उसके बाद उनके सेशन उन बच्चों से कराएंगे, जहां आपको मिल गया, आपको उस कॉलेज के बारे में जो पूछना है, उसकी निगेटिव चीजें, पॉजिटिव चीजें, जो चल रहा है, प्लेसमेंट है कि नहीं है, डायरेक्ट आप बच्चों से बात करो। और बहुत बच्चों से, मतलब हर कॉलेज के बच्चों से, NIT हो, IIT हो, IIIT हो, हर जगह आप किसी IIT में चले जाओ, MTech में, ठीक है ना, योरपीडिया का बच्चा आपको हर मतलब 90% बच्चा वहां पे ग्रुप बन जाते हैं कि मतलब लोग एज ए ब्रांड कहते हैं कि अच्छा आप योरपीडिया के वाले हो, तो मेजोरिटी उन्हीं की रहती है हर जगह, ठीक है। तो आप जैसे जाओगे वहां पे, तो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी सही, प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है उसका हुआ कि नहीं हुआ, आप डायरेक्टली बात करो,
ठीक है ना। तो डिसीजन मेकिंग जो आपकी पूरी लाइफ को आगे आसान बना देगी, सही है। उसमें सबसे बड़ा रोल है हमारा। सही है। अच्छा त्यागी सर, ये सारा आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। 2022 में आपके इनिशिएटिव पे सर हमने नॉन गेट वाले बच्चों के लिए ये काउंसलिंग ओपन किया। उससे पहले हम गेट वालों के लिए करते थे। 2022-23 2 साल ऐसे थे जिनमें नॉन गेट का हमने किया और हमने इवोल्यूशन देखा। आपसे जानना चाहेंगे, 85% बच्चे का गेट क्वालिफाई नहीं होता, और वो बच्चा, उसके पहला नीजर करेक्शन होता है कि मेरा गेट क्वालिफाई नहीं हुआ, दैट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी, सब खत्म। और उनको आसपास का जो इकोसिस्टम है वो भी उनको वैसे ही डरा रहा होता है। और कई लोग तो ये बोल रहे होते हैं कि भाई साहब दोबारा कोचिंग लो, दोबारा कोचिंग लो, और कोचिंग बिजनेस में ही रहो। जैसे कैलाश सर ने बताया, क्या कर रहे हो, कोचिंग बिजनेस में ही रहो, उनको गाइड किया जाता है। जबकि हम एज अ योरपीडिया हम उसके अगेंस्ट हैं। पहला उसका रीजन कि यार यूथ की एनर्जी वेस्ट हो रही है, अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है। दो वी आर द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म जो इंटरव्यू की गाइडेंस देता है, पीएसयू और जॉब्स में भेजता है, लेकिन स्टिल वी आर अगेंस्ट ड्रॉपिंग मेनी ईयर्स के। आप ड्रॉप करते जाओ और उसके हर बार कोचिंग लेते जाओ, वी आर अगेंस्ट दैट। आपसे जानना चाहेंगे कि जिसका गेट क्वालिफाई नहीं हुआ है उसको आप क्या दे देते हैं काउंसलिंग में सर? और आप ही ने इसको इनिशिएट किया था, आपका ही ये ब्रेन चाइल्ड है नॉन गेट वालों के लिए काउंसलिंग, और अब वो रिजल्ट दे रहा है। पिछली बार 50% हमारा नॉन गेट, 50% गेट वाला बच्चा था। अब आपसे जानना चाहेंगे कि सर उनके लिए क्या है आपके पास? सर देखो, एग्जाम्पल तो हर जगह के हैं मेरे पास, हाँ जी, ठीक है ना, और मैं उनसे इंटरेक्शन भी करते रहता हूँ, राइट, यूट्यूब पे आते रहते हैं, ठीक है ना। एक लड़का है, उसने 2 साल तैयारी की, गेट क्वालिफाई नहीं हुआ, परेशान था। सही। जहां वो कोचिंग करता था वहां पे गया मेंटर से, उन्होंने कहा कि यार एक बार होकर, अब की बार तू पक्का कर देगा, ठीक है ना, इस बार पूरे जोर से करेंगे हम ये, और तू निकल जाएगा एग्जाम में। अब सेट था वो। अब ये गेट, हमने जो नॉन गेट का जब शोर मचाना शुरू किया था, ठीक है ना, बच्चे ने किसी के कहने पे वो ज्वाइन कर लिया, मेरे पास ही आया वो। मैंने उसको कहा कि चुपचाप, तेरा गेट नहीं है ना, ये सब्जेक्ट पढ़, इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व कर, ठीक। उसको और कुछ नहीं मिलेगा, तू बिल्कुल बेफिक्र रहा है, बस पढ़ाई पे ध्यान दे। क्योंकि कई बार क्या था, बच्चे पढ़ना बंद कर देते गेट के एग्जाम के बाद, जबकि बहुत सारे नॉन गेट में ऐसे ऑप्शन है कि भी एग्जाम होंगे। IIIT हैदराबाद का एग्जाम होता है अपना, ठीक है, VIT विल्लोर का अपना एग्जाम होता है, पता ही नहीं बच्चों को VIT विल्लोर के बारे में, ये तो प्राइवेट कॉलेज है, पेरेंट्स ही नहीं भेजेंगे, ठीक है ना। तो मैंने उसको कहा कि तू तैयारी कर। हमने क्लासेस चलवाई अपनी, इंग्लिश आती है उसमें, इंग्लिश की क्लास ली हमने, और भी सब्जेक्ट जो कुछ थे हमने वो कराया उनको। उस बच्चे ने एग्जाम दिया VIT विल्लोर का, ठीक है ना, और उसकी रैंक आई बढ़िया, मतलब 1200-1300 कुछ रैंक उसमें थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच मिल गई उसको, ठीक है ना। फिर वही प्रॉब्लम कि उसके घर वाले नहीं मानने की, तो प्राइवेट कॉलेज में जा रहा है एमटेक करने के लिए, यार तुझे तो IIT जाना था। मैंने कहा तू जा वहां पे, मेरे को पता है अंदर प्लेसमेंट सीन क्या चल रहा है, ठीक है ना। अंदर के बच्चों से बात कराई, टीचरों से बात कराई, अल्टीमेटली वो मान गया, उसने ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। पहला सेमेस्टर खत्म हुआ, वार्नर ब्रदर्स में 25 लाख का पैकेज लगाया, विदाउट गेट। और इतना थैंकफुल रहता है वो कि कभी भी फोन कर दूं तो 1 घंटे से पहले फोन नहीं रखेगा, समझे ना। तो ऐसे हर जगह के एग्जाम्पल हमारे पास है। IIIT हैदराबाद में सारा बच्चा हमारे उसका ही है, बच्चों को पता ही नहीं था वहां पे बिना गेट। IIIT दिल्ली अपना बिना गेट के एडमिशन लेता है, जोधपुर, हैदराबाद। और कई बार क्या है कि बच्चों के पेरेंट्स को समझाना पड़ता है, बच्चे को समझ में आती है चीजें, पेरेंट्स नहीं मानते, उनको तो दिमाग में रहता है कि यार वहां IIT नहीं दिलवा रहे तुम तो IIT के अलावा जो बढ़िया ऑप्शन है, अल्टीमेटली तो एक अच्छी जॉब चाहिए ना बच्चे को, हमें तो बच्चे के हिसाब से सेट करना है ना उसको, कि उसका बढ़िया प्लेसमेंट हो। एक और चीज होती है सर कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड जो है ना, विदाउट गेट जो बच्चा जाता है, जैसे सेल्फ स्पॉन्सर्ड IIT हैदराबाद, IIT जोधपुर, उसमें मनी इन्वॉल्व हो जाती है फीस में। तो जब मनी इन्वॉल्व होगी कि 10-12 लाख रुपए लगेगा, तो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं उस तरीके से, उनको लगता है कि क्या वैल्यू फॉर मनी है भी कि नहीं, ये 10-12 लाख हम इन्वेस्ट करें तो क्या कुछ रिटर्न मिलेगा, दैट इज गुड, वी आर ऑलवेज। IIT हैदराबाद में एक ब्रांच है इंटीग्रेटेड सेंसर सिस्टम, हाँ जी, पहली बार स्टार्ट हुआ था। एक लड़का था अपना स्टूडेंट, उसका 600 गेट स्कोर था, उसे और भी ऑप्शन मिल रहे थे, सही है, ठीक है ना, बट उसको क्या था, VLSI का ही वो था, सोच मुझे VLSI में जाना है। अब उसने ये IIT हैदराबाद का फॉर्म हमने उसको भरवाया, तो बोला कि सर सेल्फ स्पॉन्सर्ड में मिल रहा है, 10 लाख रुपए लगेंगे, ठीक है ना, और नई ब्रांच है। प्रोफेसर से मैंने जूम इंटरेक्शन खुद किया, बात की, करिकुलम सारा समझा, और मैंने उसको बोल दिया कि तू ले ले, तेरा पैसा मतलब वापस हो जाएगा ये पूरा का पूरा, ठीक है। उसने, लड़के ने पैसे की दिक्कत नहीं थी, उसने एडमिशन ले लिया वहां पे। दो प्लेसमेंट हुए उसके 30-30 लाख के पैकेज IIT हैदराबाद में। और इंटीग्रेटेड सेंसर ब्रांच जो बनी है फर्स्ट टाइम, उसमें सारा बच्चे हमारे थ्रू गया था, मतलब वहां पे लोगों को ट्रस्ट ही नहीं था
कि पहली बार ब्रांच स्टार्ट हो रही है सही और वो सारा 100% प्लेसमेंट 25 से ऊपर का। सही है, सही है। तो ये गाइडेंस Guidance का। जिंदगी का। चलिए बहुत सही त्यागी सर। एक आई थिंक रोहित सर भी कुछ बताना चाह रहे हैं। ये जो विदाउट गेट के अभी आपने कुछ नाम लिए ना सर, इस बार कुछ और भी सरप्राइजेज हैं हाँ हाँ कि जहां जहां पे फॉर्म्स आएंगे विदाउट गेट के लिए। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे सर उसे, तो व्यूअर्स के लिए वो बताएंगे टाइम टू टाइम। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं सर जो टाइम के साथ ही पता लगता है। बहुत सारे फॉर्म्स अब हमें इंटरेक्शन में है, आईटी से टच में है, बता देते हैं हमें कि ऐसा हम करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे सरप्राइज होते हैं हिडन जॉब हो तो हिडन कोर्सेज। हम लोग भाई इतना टाइम हम लगाते हैं, 5-5 दिन हम एक आईआईटी में रह के आते हैं, ठीक है ना। अब घर वाले हमारे बोलते हैं, भाई बोलेगी कि तुम तो घूमने चले जाते हो, तुम घूम रहे हो। हाँ तुम तो मजे कर रहे हो जिंदगी में। अभी रिसेंटली कहाँ जाते हैं सर आप? अभी हम जम्मू गए, ठीक है ना, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी गए, आईआईटी जम्मू गए। तो हम तुम्हारे लोगों के लिए जाते हैं वहां पे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन अंदर से मिलेगी। वो हर बच्चे से बात करना, हर डिपार्टमेंट का लिखना कि कहाँ क्या है, प्रोफेसर से बात करना, उसके बेसिस पे गाइडेंस प्रोवाइड मतलब वेबसाइट से information। हाँ, वेबसाइट तो अपडेट नहीं होती है, सही है। वेबसाइट की तो इन्फॉर्मेशन। और ये जो गुरुदेव सर स्माइल कर रहे थे, क्योंकि इस बार हैदराबाद आईआईटी जाके आए हैं, आईआईटी जम्मू जाके आए हैं, तो कुछ जो बात होती है ना अपने बच्चों से, इनफैक्ट बच्चे प्रोफेसर बता देते हैं वो सारे पॉइंट्स वही बताते हैं वो चीजें। सर आपको मैं बताऊं कि हम लोग आई इन्वेंट दिल्ली गए, हाँ जी। वहां एक आईआईटी कानपुर के एरोस्पेस के प्रोफेसर मिले हमें। उनका हमने बढ़िया सा इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा सर मतलब अच्छे तरीके से थोड़ा प्रचार करना। तो फिर उन्होंने हमारे कान में एक बात बताई कि सर ये यूए, वो ड्रोन लेके आए थे अपने कि यूएवी में एमटेक शुरू करवा रहे हैं। हमने वो बताया, तो मतलब वो इन्फॉर्मेशन इस तरीके की कहाँ क्या शुरू हो रहा है, और ड्रोन टेक्नोलॉजी में एमटेक का कोर्स शुरू हो गया वहां पे। फिर तो ये इसी से मिलता है कि हम इंटरेक्शन करते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्चुअल मतलब उसी के बेसिस पे हम गाइड कर पाएंगे। ओके, सो पर्पस इज नहीं, ऐसा नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन कोई सीक्रेट है और वो हम ही को बताएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन देखो फैक्ट है कि जो फील्ड में एफर्ट करेगा आदमी, उसके पास इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड ज्यादा होगा। जो जितने बच्चों से बात करेगा, आप देखना एवरीडे आई थिंक 5-6 मेंटर 4-5 लोगों से इंटरेक्ट कर ही रहे हैं। बच्चों से बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ली जाती है, प्रोफेसर से ली जाती है और आप तक लाई जाती है। Okay, so now I go to Mukesh sir. Mukesh sir, after discussion with त्यागी sir, now coming to computer science. और कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा पैकेज लगता है स्टूडेंट्स का। कंप्यूटर साइंस में पेक्यूलियरिटी है वो ये है सर कि मेजॉरिटी बच्चा जो हमारे पास आता है काउंसलिंग के लिए, उसके पास कोई ना कोई जॉब है, उसको प्लेसमेंट लग जाता है और इट वेरीज फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, लेकिन जॉब होती है। अब एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉकेज बोल लो उसको, या स्टूडेंट्स का इनर्शिया बोल लो, कि दे आर ऑलवेज इनडिसिसिव। बाकी ब्रांच का बच्चा आता है तो क्लियर होता है कि मेरे को मास्टर्स वगैरह में जाना है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में एक क्वेश्चन ये भी होता है कि साहब मैं जॉब में जाऊँ सर या मैं मास्टर्स में जाऊँ, क्या बेनिफिट मिलेगा। और कई बार स्टूडेंट्स ये बोलता है जैसे सर मेरी अभी 6 लाख की नौकरी लगी है, 2 साल के बाद शायद वो 15 लाख की हो जाए, और 2 साल बाद एमटेक के बाद भी पैकेज 15 लाख का है, तो वाई शुड आई गो फॉर एमटेक। सो एक तो ये चैलेंज है सर। दूसरा चैलेंज जो हम जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस अनलाइक अदर ब्रांचेस, कंप्यूटर साइंस अपनी डोमेन में तो है ही, हर कोई कंप्यूटर साइंस में एंटर करने की ट्राई कर रहा था, तो कंप्यूटर साइंस वाला कहाँ जाने की ट्राई करेगा, क्या उसके पास कंप्यूटर साइंस का ही ऑप्शन है या और भी है। एंड हम ये भी जानते हैं कि आईआईटीज वगैरह के अंदर कंप्यूटर साइंस बहुत हाई रैंक पे जाता है सर ये डिपार्टमेंट, तो क्या कम गेट स्कोर वाला जो कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा है उसके पास ऑप्शंस क्या हैं, बिकॉज जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हैं इन इंस्टीट्यूट्स में वो हाई गेट पे मिलते हैं, तो लो गेट वाला स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का कहाँ जाएगा। तो ये 2-3 पॉइंट सर, एंड ओवर टू यू नाउ। ठीक है सर, मैं आपके पहले क्वेश्चन पे आता हूँ सर, कि आपने ये कहा कि मोस्टली जो स्टूडेंट आ रहे हैं सीएससी से उनके प्लेस हो चुके हैं वो, और उनका ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट देखा जाए तो सर 5.8, 6.2, 5.4 फाइन। अब सर यहाँ बात आती है कि वो एमटेक के लिए या एमएस या डायरेक्ट पीएचडी के लिए क्यों जाए। फर्स्ट पॉइंट सर अभी इनिशियली वो स्टार्ट कर रहे हैं 5 से, आफ्टर 2 ईयर उनका पैकेज ऑलमोस्ट 10, 12 या 13 हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, जो ग्रोथ का ग्राफ है सर, अगर आपके पास एक बड़ा टैग नहीं है तो वो ग्राफ बहुत स्लो इंक्रीज करेगा। वहीं आफ्टर 1 ईयर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 365 डेज सर। 365 डेज के बाद उनका प्लेसमेंट सिनारियो स्टार्ट हो जाएगा, और स्टार्टिंग जो प्लेसमेंट रहता है दैट इज ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 18 to 20 LPA फ्रॉम ईच एंड एवरी बेस्ट इंस्टीट्यूट लाइक IITs और NITs। फाइन सर, बट क्योंकि वहां जाने के बाद उनका एल्यूमनाई कॉन्टेक्स्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, हर एक कंपनी या हर एक ऑर्गेनाइजेशन के एल्यूमनाइज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो
कम्युनिटी में उनको एड ऑन किया जाएगा और उससे जो ग्रोथ होगा उनकी लाइफ का, मीन्स अगर आपके पास टैग है, ब्रांड नेम है, तो उसी ब्रांड नेम से आपका फ्यूचर या आपका कैरियर ग्रो करेगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा सर, अगर आप एम टेक कर रहे हैं आईआईटी से, इनिशियल पैकेज मैं वर्स्ट केस में से 12 LPA भी मान रहा हूं, तो मैं ये गारंटेड कह सकता हूं कि आफ्टर जॉब ज्वाइन करने के आफ्टर 3 to 4 years वो आराम से 60 और 70 LPA तक पहुंच सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है आप डायरेक्ट बीटेक के बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। दैट इज अ मैटर। और ये मैटर क्यों कर रहा है सर? क्योंकि आपका एल्यूमनाई कम्युनिकेशंस या एल्यूमनाई कॉन्टेक्स्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट थिंग सर। दूसरी चीज मैं आता हूं सर लो गेट स्कोर पे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि उनका एक ड्रीम है कि हम आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, कानपुर में हम सीएससी ब्रांच में ही अपनी मास्टर्स करें। बट सर आज बच्चों को समझना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। नाउ द टाइम इज ऑफ टोटली एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब पॉइंट ये है, ये एक पॉइंट है सर जो अलग ब्रांचेस पे भी वैलिड हो रहा है। आप चाहे सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, या इलेक्ट्रॉनिकल, इलेक्ट्रिकल, या किसी भी ब्रांच से हैं। एआई क्या है? एआई कोई एक स्पेसिफिक ब्रांच नहीं है। एआई एक जस्ट टूल है जो आप किसी भी सेक्टर में, किसी भी डोमेन में यूज कर सकते हैं। इट्स सिंपली अ मैटर ऑफ 15 to 20 एल्गोरिथम फंडामेंटली के लिए। सर अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आईआईटी हैदराबाद में 450 गेट स्कोर पे, इवन जिस स्टूडेंट से मेरी इंटरेक्शन हुई है मैं उसकी बात कर रहा हूं, इवन वो स्कोर 360 पे गया था। जो लोअर स्टूडेंट था उन्होंने क्लाइमेट साइंस में एडमिशन लिया। एज ए सीएससी स्टूडेंट आपने क्लाइमेट साइंस पे एडमिशन लिया। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि जो सीएससी डिपार्टमेंट है वो हायर स्कोर पे मिलेगा आपको। लो स्कोर होने के बावजूद उस बच्चे ने गाइडेंस हमने दी कि आप क्लाइमेट साइंस में जा सकते हो। वहां पे उन्होंने एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट डेटा साइंस को लिया और उनका जो पैकेज लगा है वो ऑलमोस्ट 40 LPA है। तो सर दिक्कत क्या है, जब अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री क्लाइमेट साइंस में है, और हम देख सकते हैं सर क्लाइमेट साइंस में ही फाइनली आप डेटा साइंस और एआई को तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा आपको। कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटेड टूल बनाने ही पड़ेंगे। तो डायरेक्ट कंपनी ने उन्हें पिक किया 40 LPA पे। दूसरी चीज सर, ये पीजीसी का जो मॉड्यूल है हमारा, ये बच्चे को क्यों लेना चाहिए? हम क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं? सर मोस्टली क्या होगा, जितनी भी स्टूडेंट्स हैं गेट देने के बाद, आज भी हम जब ये वीडियो सेशन रिकॉर्ड करें ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज हो चुके हैं सर, एक भी स्टूडेंट ने वापिस से अपनी जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है और वो नेक्स्ट 6 मंथ तक अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी हमने इंटरेक्ट किए हैं कि सर अगर मैं सिविल का स्टूडेंट हूँ और मुझे अभी जाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इवन दो मेरे को वो ब्रांच नहीं मिलेगी, मेरा गेट स्कोर लो है, बट क्योंकि इलेक्टिव ऑप्शन हर आईआईटी हर एनआईटी दे रहा है, व्हाई नॉट यू स्टार्ट लर्निंग एआई, एमएल, डेटा साइंस, एआर, वीआर। तो ये वो पॉइंट है जहां हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं, प्रॉपर गाइड करते हैं। उसके बेसिस पे जो इनका कैरियर बनेगा इन द फील्ड ऑफ एआई एंड डेटा साइंस, वो अगर फंडामेंटल उनके स्ट्रॉन्ग से। दूसरी बात, इन फंडामेंटल का हेल्प कहाँ होगा? आपको एमटेक नहीं मिल रहा, आपको एमएस मिल रहा है, आपको डायरेक्ट पीएचडी मिल रही है, वहां होना है सर इंटरव्यू। इंटरव्यू की गाइडेंस कौन प्रोवाइड करेगा? सर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करवाना है, इंटरेक्ट कैसे करवाना है, ये सारी चीजें यहाँ हम वो एज ए सर्विस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये बहुत बेनिफिट है स्टूडेंट कम्युनिटी को। मैं यही कहूंगा, आपका गेट जैसा भी गया है, हम एसईओ कर रहे हैं आपको कि आपका कहीं ना कहीं एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में अच्छी ब्रांच में आपका एडमिशन हो जाएगा। बट द पॉइंट इज यू हैव टू पुट द एफर्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। अच्छा मुकेश सर, एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका बड़ा फ्रैंक आंसर आपसे चाहूंगा। आपने बताया क्लाइमेट साइंस में आपने बच्चों को मेंटर किया, और क्लाइमेट साइंस ऑलमोस्ट हर आईआईटी के अंदर होता है, राइट सर। वैसे अर्थ साइंस होता है, क्लाइमेट साइंस होता है, बहुत से ब्रांचेज हैं इंटरडिसिप्लिनरी, राइट। ऐसे कितने और लोग होंगे जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे को बोलेंगे कि आप क्लाइमेट साइंस में चले जाओगे? सर एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको ये गाइड करेगा कि आप कॉग्निटिव साइंस, क्लाइमेट साइंस, पब्लिक पॉलिसी में चले जाओ।
बेसिकली सीएससी और ईसी स्टूडेंट को तो एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो ये गाइड कर रहा है कि आप इन ब्रांचेस में जाओ, बट द पॉइंट इज उनको ये नहीं पता कि हर आईआईटी, सर आज का टाइम पहले वाला नहीं रहा कि आप एक किसी भी ब्रांच को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उन्हीं के रिलेटेड सब्जेक्ट रीड कर रहे हैं। आज इंटरडिसिप्लिनरी या ओपन सिस्टम है सर, वहां पे आप एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट जो आपका मन आ रहा है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट सिलेक्ट करें और उसी के अकॉर्डिंग जो आपका इंटरेस्ट है आप जाएं, कंपनीज में बैठे। अनफेयर काम कहीं पे भी नहीं है, हर एक आईआईटीज, हर एक एनआईटीज में आप हर कंपनीज में बैठ सकते हैं। द पॉइंट इज you need to improve or enhance your skills. I'll share my experience of recent visit to IIT जम्मू सर। हम गेट से अंदर गए और हमने पूछा कि हमें केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना है, फिर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना है, हमें किसी प्रोफेसर से मिलना है। तो आई वॉज टोल्ड बाय द पर्सन देयर कि यहाँ पे ऐसा डिपार्टमेंट है ही नहीं। आई मीन यू गो टू सम रूम, यू शुड नो द रूम, एंड यहाँ पे सारा मिक्स है। सेम आईआईटी गांधीनगर में आई मेट प्रोफेसर उदित भाटिया, ही वाज सिविल इंजीनियर सर, और वो मेरे को अपनी लैब में ले गए जहाँ पे कुछ फिजिक्स के बच्चे थे, कुछ कंप्यूटर साइंस के थे, कुछ इलेक्ट्रिकल के थे, एंड ही इज अ सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर एंड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन स्ट्रक्चर्स। तो ये जो आप बता रहे हैं ना सर कि ये अब सारे का सारा एक बेसिकली जो सिस्टम होता था पहले की रिजिड जैसे एक स्ट्रक्चर होता था कि नहीं साहब ये डिपार्टमेंट में ये लोग रहेंगे, वैसा नहीं रहा है अभी। और सर आईआईटी जम्मू का जैसे अभी आपने नाम लिया, मेरे को एक चीज याद आ रही, अभी अभी हमने एक इवेंट को कवर किया था, आई इन्वेंट आईआईटी हैदराबाद में, इंडिया लार्जेस्ट R&D फेयर सर। सर उसमें आईआईटी जम्मू में ऐसा इतना अच्छा डिफेंस सेक्टर के लिए काम हो रहा है, और डिफेंस सेक्टर भी काम ड्रोन में या बुलेट प्रूफ जैकेट्स में। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है सर, या इंटरडिसिप्लिनरी स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट है जिसमें मैकेनिकल भी होगा, आपका सिविल भी होगा, आपका कंप्यूटर साइंस भी होगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा, और इतना औसम काम हो रहा है। इवन दो मोस्टली स्टूडेंट्स देखते हैं कि हम आईआईटी जम्मू क्यों जाएं, जैसा त्यागी सर ने बोला कि घबरा रहे हैं पेरेंट्स सोच रहे हैं, बट द पॉइंट इज अच्छी आईआईटी, न्यू आईआईटी, उसमें भी अब स्टूडेंट्स का एक ये भी क्वेश्चन रहता है सर, बीच में मैं ये इंटरप्ट कर रहा हूँ कि सर ये तो थर्ड जेन आईआईटी है, बट सर ऑलमोस्ट हर एक थर्ड जेन आईआईटी में जो अगर फाइनली हमारा मोटो क्या है, प्लेसमेंट, हर एक आईआईटी में बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है। पॉइंट वहां आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, कितना एनहांस कर रहे हो अपनी लर्निंग को। See, now we'll go to Manish sir, but before that I would like to tell that जो हम अलग अलग आईआईटीज़ में जाते हैं, अभी रिसेंटली जम्मू का ट्रिप हमने किया और उसमें सबसे बड़ी बात यही थी, उसका जो मेन थीम था कि जम्मू इज़ अ वेरी वेरी सेफ प्लेस। मतलब दोज हु आर लिसनिंग टू अस, लेट मी टेल यू, जम्मू के यहाँ कश्मीर नाम लगा होता है, जम्मू एंड कश्मीर, दो कश्मीर इज़ ऑल्सो सेफ एंड there is no worry there. We keep on interacting with students from NIT Kashmir, Srinagar and all. But जम्मू में तो वैसे कभी कुछ नहीं हुआ। जम्मू is a very very safe place and Jammu is a fast coming up educational hub. In fact, we were going on the highway in Jammu and we found AIIMS and then IIT Jammu and then IIT और IIM जम्मू तो बिल्कुल साथ ही, उनका तो एक रास्ता भी बीच में से निकल रहा है कि अगर IIT जम्मू में आप पढ़ेंगे तो अंदर से ही, आपको बाहर से नहीं जाना पड़ेगा, अंदर से आप IIM जम्मू में पहुंच जाएंगे, वहीं से दिखता है सामने। सो जम्मू इज कमिंग फास्ट एज एजुकेशनल हब। नंबर 2, जितने भी नए आईआईटीज हैं उनमें यंग ब्लड इज देयर, यंग प्रोफेसर्स आर देयर, एंड आप जानते हैं कि व्हेन यू ज्वाइन एज असिस्टेंट प्रोफेसर यू हैव लॉट ऑफ अर्ज एंड जील टू प्रूव योरसेल्फ। बहुत अच्छा काम आप कर रहे होते हैं, दे आर लाइक फ्रेंडली फॉर यू स्टूडेंट्स। जैसे जैसे आप सीनियर हो जाते हैं, सीनियर प्रोफेसर हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ एज एंड समथिंग वो गैप आएगा, लेकिन नए आईआईटीज में ऐसा नहीं है। नए आईआईटीज आर बबलिंग विद द एनर्जी एंड देयर इज अ वंडरफुल इफ यू कैन गेट अपॉर्चुनिटी देयर। सर न्यू आईआईटी में एक पॉइंट हम और ऐड कर सकते हैं आईआईटी जम्मू के रिगार्डिंग, बिकॉज माय टू फ्रेंड्स आर देयर एज अ फैकल्टी, सो फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो इज वेरी गुड देयर न्यू आईआईटीज में। तो मास्टर्स में जब रहते तो आपका फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने देखा होगा कि जब प्लेसमेंट की बात आती है तो एफर्ट्स फैकल्टी के इंडस्ट्री में कनेक्शन रहते हैं, तो उनके थ्रू भी प्लेस होते हैं बच्चे। तो आईआईटी जम्मू एक ऐसा आईआईटी है जहाँ पे स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो बहुत अच्छा है, बहुत है। मींस यू कैन इंटरेक्ट फ्रीक्वेंटली विद द मेंटर्स एज कंपेयर टू ओल्ड आईआईटी, राइट? मतलब अगर हम ऐसा बोलें सर कि स्टूडेंट्स को जो रिलेटिवली न्यू आईआईटीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा अटेंशन और बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ मिलता है, तो दैट इज़ करेक्ट। मतलब उनको प्रोफेसर भी चाहते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। नाउ कमिंग टू मनीष सर, यू आप खुद आईआईटी दिल्ली के प्रोडक्ट हैं सर, आपने मास्टर्स किया है। what you will say about IIT? Why a student should join IIT for masters?
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, तो इसका मैं आंसर करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि गेट क्वालिफाई करने के बाद जब इवन मैंने भी क्वालिफाई किया था लास्ट, जब मैंने एमटेक किया था उससे पहले, और मुझे नहीं पता था कि अप्लाई भी करना होता है तो उस टाइम भी मुझे नहीं पता था। तो आज भी स्टूडेंट के साथ ऐसा फेयर होगा, जो बहुत सारे स्टूडेंट गेट तो क्वालिफाई कर लेंगे लेकिन उनको नहीं पता होगा। तो ये जो वीडियो बन रहा है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो उसको अगर देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़। अब नेक्स्ट आता है कि आईआईटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आईआईटी में एक आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो किसी भी एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में अगर आप बीटेक कर रहे हो तो वहाँ पे ऐसा नहीं मिल पाता है। करेक्ट, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोफेसर्स रहते हैं वो रिनाउंड प्रोफेसर हैं जो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे होते हैं, और वो बाहर भी जाते हैं एज ए गेस्ट लेक्चर लेते हैं वहाँ पे भी जाके, और भी बहुत सारा उनका कांटेक्ट रहता है इंडस्ट्रीज में भी। तो कहीं ना कहीं उनका जो कांटेक्ट है वो एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी आपको देता है, तो उसके लिए आपको जाना चाहिए मास्टर्स के लिए। और एक और बहुत बड़ा रीजन है कि आपकी खुद की ब्रांड वैल्यू बनती है ना। जब तक आपकी ब्रांड वैल्यू खुद की नहीं है तो वो कोई सुनेगा नहीं। सही है ना। जो सबसे बड़ा एग्जांपल केजरीवाल जी को है, देख अगर वो आईआईटी से नहीं पढ़े होते और ये आईआरएस ऑफिसर नहीं होते तो हो सकता है इतना कोई नहीं सुनता। ऐसे तो कितने लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कितने लोग क्या करते हैं, किसको जानता है। तो एक ब्रांड वैल्यू है जो कहीं ना कहीं बहुत आपकी हेल्प करती है। और फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो प्लेसमेंट का, तो जो आप अगर प्लेसमेंट कहीं और नॉर्मल कॉलेजेस से लेते हो, जॉब लगती है ऑब्वियसली किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट होगा, कहीं ना कहीं उसकी जॉब है और मिलती भी है, और पैकेज भी ठीक ठाक रहता है। लेकिन जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत स्लो होगा, और वहां पे आपको एक ड्रास्टिकली एक पुशबैक मिलेगा जो स्काई रॉकेट बना सकते हो आप। मतलब जहां आपको 10 लाख का पैकेज लेने में एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर हम देखें, है ना, जो कोर ब्रांच है इनका स्टार्टिंग पैकेज इतना ज्यादा नहीं रहता। प्राइवेट कॉलेज में अगर आज भी देखें तो आज से 10 साल पहले भी 2 लाख का जॉब लगता था, आज वो तो नहीं लगती है ना। तो कोई प्लेसमेंट में या सैलरी पैकेज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप आईआईटी में एंटर करते हो तो वहां पे आपको स्टार्ट ही होगा 12 लाख से 15 लाख से, जो कोर में है। और कोर में तो स्टार्टिंग में तो रॉ मटेरियल होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब आप वहाँ पे सिस्टम में जाते हो, वर्क करते हो और आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, फिर आपका एक्सपोनेंशियल ग्रो होता है। और वहाँ पे फिर आपकी वैल्यू, मेरा भी जो मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरा क्लासमेट है जो मैंने 2011 से 13 के बीच में एमटेक किया था आईआईटी दिल्ली में। तो जस्ट बीटेक करके एंटर हुआ आईआईटी में, एक भिलाई के एक नॉर्मल से कॉलेज में पढ़ाई की उसने, और आईआईटी में एंटर हुआ, और 2 साल उसने 100% फोकस था, उसको जॉब चाहिए एनी हाउ, फोकस था। तो आपको भी ऐसे फोकस होके रहना पड़ेगा। और उसने 2 साल एमटेक प्रोग्राम किया और उसका मर्सिडीज में जॉब लगा। मर्सिडीज मतलब एक ड्रीम जॉब है ना, लोग कार देखते हैं, वो मर्सिडीज में जाके R&D में वर्क कर रहा है। और जर्मनी में उसकी ज्वाइनिंग हुई, जर्मनी गया वहाँ पे, और फिर उसके बाद कंपनी ने उसको पीएचडी भी कराया, आपके हायर स्टडीज भी कंप्लीट कराई, और विथ प्रॉपर सैलरी जो आपकी मिल रही है वो तो है ही है, और पैकेज तो अब क्या ही मैं बोलूँ कि क्या होगा पैकेज। उसके बाद और भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज खुलती गई, और एक ही कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ 10 to 12 ईयर्स में, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ग्रोथ मिला, जो कि बाहर से नहीं मिल सकता, इम्पॉसिबल टास्क। तो ये सर मेरा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा मनीष सर। और ये अगर मैं समराइज करूं आपका, तो आईआईटीज का अपना एक ऑरा है, अपनी एक एनर्जी लेवल है, और एक जो इमेजिनेशन फायर होती हैं ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, बिकॉज ऑफ द पीयर्स यू गेट इन टच विद द बेस्ट ब्रेन, यू गेट इन टच विद द प्रोफेसर्स, दोज हु आर पॉजिटिव, दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, दे आर लॉट ऑफ एक्सपोजर। अब प्रोफेसर अगर खुद पॉजिटिव है, खुद हार्ड वर्कर है, खुद बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे एफर्ट कर रहे होते हैं, तो ऐसा इकोसिस्टम आपको भी ट्रेन कर देता है। और एक अगर बेस्ट जो लर्निंग है, आई डोंट नो व्हाट पीपल थिंक दे गो टू आईआईटीज, प्लेसमेंट इज द लास्ट थिंग आई मीन विच दे शुड टारगेट। मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस। आप एक आईआईटीएन हो, आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो ब्रांड आपके साथ गया, वो चाहे आप सड़क में ना नीचे अगर चाय की दुकान भी खोलोगे, बिकॉज यू आर आईआईटीएन, यू विल मेक अ डिफरेंस। वाई? बिकॉज कॉन्फिडेंस होगा, वो कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, आपका जो सर्कल बनता है, नो डाउट। तीसरा, आपकी जॉब चाहे बहुत कम वैल्यू से लगे, लेकिन बिकॉज यू हैव अ ब्रांड विद यू, तो जो ग्रोथ मिलेगी वो प्रोपोर्शनल मिलेगी। तो वो बच्चों को इस स्टेज पे आइडिया नहीं होता, सो दे रन आफ्टर जॉब्स बट दे शुड रन आफ्टर ब्रांड एट दिस स्टेज। अगर करेंगे तो ऑब्वियसली जॉब्स तो करना ही है। तो बहुत वंडरफुली आपने एक्सप्लेन किया सर। और सर एक लास्ट एक पॉइंट और बताऊंगा
कि जब हम आईआईटी में जाते हैं तो जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो एकदम न्यू टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो अवेयरनेस हमें वहाँ पे मिलती है, हमें बाहर नहीं मिल सकती है ना। और वो इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे वहाँ पे। जैसे हमने एक रैपिड प्रोटोटाइपिंग हमने जब हमारे टाइम पे आया था तो हमने देखा था रैपिड प्रोटोटाइपिंग में बिना कैड मॉडलिंग करे वो कैसे कैड मॉडल बना रहा फोटो खींच के। तो अगर हम वहाँ नहीं होते तो मुझे आज भी नहीं पता चलता। सही है। तो जो रिसेंट न्यू टेक्नोलॉजीज होती हैं वहाँ उसके पे ऊपर आपको काम करने hands-on देखने को मिलता है, प्रैक्टिस करने को मिलता है। Wonderful. So now we come to Priyanka Tyagi, and we'll go for, you are from civil engineering, Priyanka. Yes, sir. You have done your masters. मेरा सिविल इंजीनियरिंग, जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस की बात किया था, सिविल इंजीनियरिंग एक्सट्रीम दूसरी साइड है। सिविल इंजीनियरिंग में जब भी मैं बच्चों से बात करता हूँ प्लेसमेंट के लिए, तो उनका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता जब आईआईटीज़ में बच्चे पढ़ रहे हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है वो अपने प्रिपरेशन कर रहा होता है, और जब मैं प्लेसमेंट ऑफिसर से बात करता हूँ कि सर सिविल का बताओ, तो प्लेसमेंट ऑफिसर बोलता है कि सब सिविल वाले बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं होते प्लेसमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा। तो जब आप लेकिन पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग के लिए आते हैं हमारे पास, हर साल ही सिविल के बहुत बच्चा आता है। अब क्वेश्चन ये है प्रियंका कि जब सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चा इंटरेस्टेड प्लेसमेंट में नहीं है, तो प्लेसमेंट के लिए ही बच्चा आईआईटी जाता है, लेकिन फिर भी पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग ले रहा होता है, तो व्हाट इज़ दिस पेक्यूलियरिटी? तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आईआईटीज़ जाना या एमटेक करना, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? व्हाट डू यू थिंक दैट वे? एंड पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग जब हम करें तो बच्चों को हम किस तरीके से उसमें आगे गाइड करें और किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? वट एवर यू वांट टू टेल। सर, जैसे आपने अभी बोला कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहते हैं क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट जॉब्स काफ़ी निकलती हैं, राइट? तो फिर वो चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब, एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले, एक ऐसा कॉलेज मिले जहाँ पे हम गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपरेशन कर पाएं। जैसे अपने सीनियर से पूछ लेते हैं, कोई उनके सीनियर होता है जो आईआईटीज़ में होते हैं कि भाई यहाँ पे माहौल है, अपने ये गाइड के अंडर हम तैयारी कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो गवर्नमेंट जॉब की सबसे ज़्यादा तैयारी करते हैं, बट प्लेसमेंट्स के लिए वे क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारी, एक तो वो कोर कंपनीज में जाना चाहते हैं और कोर कंपनीज में पैकेजेस स्टार्टिंग में कम मिलते हैं। सिविल इंजीनियरिंग ऐसी ब्रांच है जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस के साथ आपका पैकेज बढ़ेगा। तो अगर आप स्टार्टिंग में आप सोचो कि भाई मैंने तो एमटेक इतने अच्छे आईआईटी से करा है कि मेरे को क्यों नहीं मिला है पैकेज, वो डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। दूसरी चीज, गवर्नमेंट जॉब है तो ज्यादातर बच्चा क्या करता है, उसकी तैयारी में लगा रहता है। तीसरी चीज, अब जैसे अगर उसने किसी एक ऑर्डिनरी कॉलेज से कर लिया, अपना मास्टर्स कर लिया, उसने सोचा था कि ये 2 साल मेरे एमटेक के हैं, मैं तो अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, उसके बाद उसको नहीं लगी गवर्नमेंट जॉब, अब उसके पास क्या है? उसके पास तो प्लेसमेंट भी नहीं है क्योंकि उसने ऑर्डिनरी कॉलेज से कर लिया। तो इस वजह से वो चाहेगा कि मैं एक आईआईटी से करूं जहां पे प्लेसमेंट्स के लिए भी कंपनियां, जैसे सर ने बताया कि एक ब्रांड नेम होता है, तो इस वजह से वो पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग के लिए भी आता है। एंड सर, एक और चीज मैं अगर बोलना चाहूँ, जैसे बहुत स्टूडेंट को काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है। उसको लगेगा कि उसका कोई सीनियर था, वो तो 45+ पे उसको आईआईटी मिला था, मेरे तो इस बार 40 मार्क्स आए, मुझे नहीं मिलेगा। बट अगर आप देखो जो हमारे लास्ट ईयर बच्चे भी प्लेस हुए हैं 40 मार्क्स पे, मतलब कि 400 स्कोर पे, 380 स्कोर पे भी उनको आईआईटीज मिले हैं। तो अब क्या होगा, उनको प्लेसमेंट भी अच्छी मिलेगी क्योंकि एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, साथ में वो अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है काउंसलिंग एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनको इसकी इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है। प्रियंका, एक पॉइंट मैं सब स्टूडेंट्स को यहाँ बताऊंगा कि इट इज नॉट मार्क्स, आई मीन गेट, हम तो बोलते हैं बिना गेट के भी, लेकिन अगर स्टूडेंट रेडी है कि उसको एफर्ट करना है अगले कुछ मंथ्स, 4-5 मंथ, और वो जाना चाहता है, तो मेंटर्स विल पॉजिटिवली हेल्प हिम। अगर सपोज उसका गेट है भी नहीं, लेकिन फिर कम्पिटिटिव एग्जाम तो लेता है आईआईटीज, अपने एग्जाम भी लेते हैं आईआईटीज, तो अगर तैयारी करने को तैयार है तो वो ऑब्वियसली उसका हो जाएगा। सो अगर कोई स्टूडेंट ये बोल दे हमें कि साहब मेरे पास क्रेडेंशियल्स नहीं है, गेट नहीं है मेरे पास, मान लो सीजीपी भी नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे को किसी तरह से आईआईटी जाना है, तो उसको एक चीज बस कमिट करनी है, वो ये कि वो एफर्ट करने को तैयार है। लेकिन अगर बोलता है कि साहब मैं तैयार, एफर्ट भी नहीं कर सकता, तो यूआरपीडी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। यूआरपीडी इज नॉट अ प्लेटफॉर्म जो पीछे से आपके एडमिशन दिलवाता है, वो नहीं करते हैं हम लोग। हम मेंटर करके ही करते हैं, वी आर टीचर्स, हम गाइड करके ही करेंगे, लेकिन स्टूडेंट शुड बी रेडी टू पुट एफर्ट। एक और चीज पूछूंगा आपसे प्रियंका, सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच भी है जिसमें मैक्सिमम इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट्स में भी अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के जहां पे आप अदर देन कोर भी एमटेक कर सकते हो। कुछ नाम आपसे जानना चाहेंगे, कौन कौन से नाम हैं जो ज्वाइन कर सकता है सर, स्टूडेंट? आज के टाइम पे एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, ये 2 मेन है, ये 2 सबसे मेन है। उसके बाद आपका आ जाता है रूरल डेवलपमेंट, ओशियन एनर्जी, क्लाइमेट साइंस भी, जैसे अभी सर ने बताया कि वो एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, उसमें सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी ऑप्ट कर रहे हैं, जिसमें भी मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आपने टेक्नोलॉजी पे, आपको पाइथन आना चाहिए, आपको कोडिंग आनी चाहिए,
तो उसके लिए आप ये सारी ब्रांचेस एक्सप्लोर कर सकते हो। रूरल डेवलपमेंट हो गया, सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग हो गई, जो हमारे एनजीओ इन्फॉर्मेटिक्स हो गई, Yes, ये सारी ब्रांचेस है। Even disaster management भी मेरे को लगता है बहुत अच्छा है। एंड जैसे कि सर आपको भी पता होगा कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो है जैसे आईआईटीज हैं, उनमें डिजास्टर मैनेजमेंट का जो कोर्स है वहाँ पे डायरेक्ट उसी के लिए प्लेसमेंट के लिए आते हैं कि अगर आपने मास्टर्स डिजास्टर मैनेजमेंट की है तो कुछ पीएसयूज होंगे जो आपको डायरेक्टली उसके लिए हायर कर लेंगे। सही बात है। तो ये भी अपॉर्चुनिटीज डिपेंड करती है कि आप कैसा स्पेशलाइजेशन करते हो। Wonderful. Now after Priyanka and her input about civil engineering, कविता मैम over to you. So कविता मैम, हम पोस्ट गेट ये जो हमारा फॉरेन ग्लोबल मॉड्यूल है उसमें आप एक मॉड्यूल हैंडल कर रहे हैं जो है प्रीमियम मॉड्यूल. What I understand is like if some student comes to you and shows you his credentials to you, you will tell him that don't worry, we will catch the professors for you, we will help you in getting the admission. And it is because global universities, so students do not know there are so many factors involved in that. So this time we discussed why not ma'am premium module for Indian admissions also, because last time हमने start कर दिया था for students those who want to go abroad, they can join our modules, but they were regular modules. In foreign consultancy also you have regular modules, you have premium also. So we want you to tell us what is premium module, number one. And when you start premium module for Indian universities also through post-grad counseling, what will be the recipe of that? Okay, so as you said that last year we had started this India plus abroad module. So in that we did not have a premium module. Premium module means it is for those students and people who are working or students who do not have time to apply themselves. Okay, premium module means we will be like preparing their documents. We will be finding universities for them. In India, if I talk about India first, we will be finding courses like and we will be finding the top universities like IIT, NIT, IIT, like where they can fit, okay, and we will find courses for them. And moreover, we'll be making the documents, because preparing documents for India and abroad is a bit different. Okay, so they can get an opportunity to get admission in India, but side by side they will be preparing for abroad also. And we have great opportunity with the direct PhD also for BTech students now. So and huge opportunities there for direct PhD. And so we will be preparing their documents, either they want to apply for MS or direct PhD. We'll be preparing their documents for the foreign universities also. And we will be applying for universities also, because the university application process is a bit difficult outside India. In India it is simple, so we'll be just guiding them, but outside India we'll be applying for them also in that. Okay. सो मैम दिस इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ निकलेगा, जैसे फॉर्म्स वगैरह निकलता है तो स्टूडेंट्स को हम बताते हैं कि तुम लोग भर दो, तो प्रीमियम मॉड्यूल में दैट मीन्स वी विल बी गिविंग देम सम स्पेशल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट और स्पेशल इनपुट्स दैट ओके, बिकॉज फॉर्म भरना भी स्टूडेंट्स को नहीं आता बहुत ज़्यादा, मतलब उनको आइडिया नहीं होता. कई बच्चे ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं होता. आपने तो ये बोला कि सब टाइम नहीं है उनके पास, मैं तो ये बोलूँगा कि उनको भरना भी नहीं आता. कई बच्चों को कैपेबल हैं लेकिन भरना नहीं आता, मे बी दे स्किल्ड इन डिफरेंट डोमेन बट नॉट इन दिस. तो क्या उनको स्पेशल टाइप का हम हेल्प कर सकते हैं उनको? Yes, we'll be helping them in all the forms also. And plus उनको जब जैसे हम यूनिवर्सिटीज बताएंगे, कोर्सेज बताएंगे, तो साथ साथ सारा प्रोसेस भी बताएंगे हम उनको. जहाँ भी उनको डिफिकल्टी आती है, दे कैन कॉन्टैक्ट अस. लाइक वी सेड, वी आर एवरी टाइम अवेलेबल. वट एवर प्रॉब्लम्स दे हैव, दे कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली. 1-to-1 इंटरेक्शन होगी उनके साथ. हम कहीं भी उनको डिफिकल्टी आती है, जिस भी मेंटर के साथ उनको कनेक्ट करना है, वील बी कनेक्टिंग देम. ओके, सो मैम नॉट ऑफिशियली बट अनऑफिशियली यू टेल मेनी टाइम्स कि प्रीमियम मॉड्यूल सिंपली मीन्स कि आप ज्वाइन करोगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा. सो कैन वी से द सेम थिंग फॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, इफ दे कम टू यू, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप बना देंगे कुछ उनका? यस, ऑब्वियसली. अब उन्होंने अगर प्रीमियम मॉड्यूल ज्वाइन करना है तो इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू गेट देम प्लेस्ड. Wonderful. Thanks a lot, Kavita ma'am. Now Geeta is a new face, post-grad counseling. So Geeta, you are a psychology masters. You have done masters in psychology, and it was your insistence that you went with the team to IITs, IIT Mandi I believe first time, IIT Ropar, और बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपोजर है आपको गीता. एंड आप ही के इंसिस्टेंस पे कि वी शुड डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स ऑल्सो. सो वी आर दिस टाइम गोइंग फॉर पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग फॉर ह्यूमैनिटीज़ ऑल्सो. तो मेरा पहला क्वेश्चन गीता आपसे कि ह्यूमैनिटीज़ जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? नंबर वन, जैसे हमने ऑब्वियसली लास्ट ईयर हमने जो साइंस है और इंजीनियरिंग है उसको तो हम कर ही रहे हैं. हमने साइंस भी स्टार्ट कर दिया था 2 साल पहले, फिजिक्स केमिस्ट्री सब किया था. साइंस एंड इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं. अब ह्यूमैनिटीज़ में क्या क्या आता है गीता? दैट इज नंबर वन क्वेश्चन. एंड सेकेंड, डू दे नीड अस? Yes, definitely. Okay. So hi everyone, I'm Geeta Verma, and first of all I just want to tell
what kind of disciplines are included in humanities and social sciences. एक चीज़ क्लियर रखो कि humanities and social sciences भी कंसीडर किया जाता है एंड लिबरल आर्ट्स भी इसको कंसीडर किया जाता है आईआईटीज़ में एंड काफ़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में. अब जब ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज की बात होती है तो इसमें कुछ डिसिप्लिन्स होती हैं, जैसे कि साइकोलॉजी, फिलोसफी, लैंग्वेजेस होती हैं, संस्कृत है, इसमें इंग्लिश है एंड जर्मन लैंग्वेज भी इसमें काउंट की जाती है. इवन डिफरेंट और लैंग्वेजेस हैं वो भी यहाँ पर काउंट होती हैं. एंड सोशल साइंसेज में सभी चीज़ें आती हैं. पॉलिटिकल साइंस की आप बात करो, जोग्राफी की बात करो आप, या फिर पब्लिक पॉलिसी की बात की जाए वो भी इसमें इंक्लूडेड किया जाता है. सोशोलॉजी है वो इंक्लूडेड है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडेड है, इकोनॉमिक्स इंक्लूडेड है इसमें, मैनेजमेंट को भी आईआईटीज़ ने इंक्लूड किया है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के डिपार्टमेंट में. एक चीज़ कंसीडर करो कि ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज तो ये फेमस है ही टर्म, लेकिन लिबरल आर्ट्स भी इसी से रिलेटेड है. जब लिबरल आर्ट्स की बात हो या सोशल साइंसेज की बात हो या सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ वर्ड आए तो ये सब सेम है. एंड आईआईटीज़ की बात हो रही है, एनआईटीज़ की बात हो रही है. आईआईटीज़ एनआईटीज़ ने भी रिकॉग्नाइज किया है ह्यूमैनिटीज़ की इंपॉर्टेंस को. सबसे पहला क्वेश्चन जब भी कोई स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम को चूज़ करता है यही कंसीडर किया जाता है ह्यूमैनिटीज़ क्यों. 90% मार्क्स है या 95% मार्क्स है, गो फॉर इंजीनियरिंग, गो टू बी अ डॉक्टर्स, कुछ नर्स वगैरह के कोर्सेज वगैरह करो. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस को आईआईटीज़ एनआईटीज़ ने एंड नेप 2020 ने भी रिकॉग्नाइज किया और उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है. जो भी स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज़ डोमेन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर ह्यूमैनिटेरियंस. ह्यूमैनिटीज़ डिसिप्लिन आपने चूज किया, Others are not. yes you are humanitarian, even a discipline वो चूज किया आपने एंड पर्टिकुलर उस फील्ड में आप हो. मास्टर्स एंड पीएचडी जैसे हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए आप जा रहे हो, योरपीडिया है. मैंने आपको इंसिस्ट किया था कि पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग ह्यूमैनिटीज के लिए होनी चाहिए, बिकॉज सर जब हम मास्टर्स करते थे ना हमें कोई पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग देने वाला नहीं था. गेट एग्जाम ना 3 इयर्स हो गए हैं ह्यूमैनिटीज के लिए, लेकिन कोई बात नहीं करता कि गेट एग्जाम भी आप दो, प्रिपेयर करो. इवन जितने भी यूजीसी नेट के बारे में बात होती है, यूजीसी नेट है, गेट एग्जाम है, उसके बिहाफ पर आप मास्टर्स के लिए, पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हो अगर ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन से हो. गेट एग्जाम अब हो चुका है. अब अगर आप साइकोलॉजी डोमेन से हो, फिलोसफी से हो, लिंग्विस्टिक में, इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में गेट एग्जाम आप दे सकते हो. सोशोलॉजी से हो गेट एग्जाम दे सकते हो. मास्टर्स के लिए जा सकते हो आईआईटीज में, एनआईटीज में, पीएचडी के लिए जा सकते हो ऑन द बिहाफ ऑफ योर गेट एग्जाम. यूजीसी नेट क्लियर नहीं हुआ, गेट एग्जाम दे सकते हो और उसके बिहाफ पर जा सकते हो. ये चीज़ें हैं. अब यूजीसी नेट के बाद, गेट एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स आते हैं ह्यूमैनिटीज़ डिसिप्लिन में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए. मैं 2 चीज़ें यहाँ पर कंसीडर करूँगी. अगर आपने गेट और यूजीसी नेट दे दिया है तो यहाँ पर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कंसीडर करती हैं एंड उसके लिए आप मास्टर्स पीएचडी के लिए जा सकते हो. लेकिन अगर आपने गेट नहीं दिया और आपने यूजीसी नेट नहीं दिया और आपको देना भी नहीं है तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर आप जा सकते हो. रिसर्च एरिया में अगर इंटरेस्टेड हो देन यू कैन गो फॉर इट. इवन योरपीडिया है, योरपीडिया ग्लोबल है, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ह्यूमैनिटीज़ डोमेन के जो हैं जुड़े हुए हैं. मैम मैं लिंग्विस्टिक्स से हूँ, मैम मैं साइकोलॉजी डोमेन से हूँ, पॉलिटिकल साइंस में हूँ, पब्लिक पॉलिसी से मास्टर्स की है और मुझे ये करनी है. मुझे मास्टर्स करने के लिए जाना है, मुझे पीएचडी करने के लिए अब्रॉड जाना है. इवन अब्रॉड तो है ही ऑप्शंस, लेकिन यस गेट एग्जाम दिया है, यूजीसी नेट दिया है, अब आईआईटीज़ एनआईटीज़ को टारगेट कर लो. क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटीज़, क्यों मैं आईआईटीज़ एनआईटीज़ का बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मनीष सर ने भी यहाँ पर बताया कि आईआईटीज़ में ना एक एक्सपोजर डिफरेंट है. आपने ये बोला ग्लोबल एक्सपोजर अगर चाहिए ना ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स को तो आईआईटीज़ एनआईटीज़ हैं इंडिया में जो आपको वो एक्सपोजर प्रोवाइड करेंगे. अब आपने सपोज करो मास्टर्स की हुई है साइकोलॉजी डोमेन से, आप पीएचडी के लिए जाओगे. मैं नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट से बात करती हूँ, मैं उनसे ये पूछती हूँ कि तुमने पीएचडी की है एंड पीएचडी में क्या कर रहे हो, किस टाइप की रिसर्च है. जिस भी स्टूडेंट्स ने गेट एग्जाम दिया है, यूजीसी नेट दिया, आपको भी पता है कोरिलेशनल रिसर्चेज होती हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज होती हैं. यूजुअली क्या होता है, यूनिवर्सिटीज कोरिलेशनल जो रिसर्चेज है उस पर फोकस करती है. लेकिन जब सर मैं आईआईटी रोपड़ गई थी ना, मैंने डॉक्टर परविंदर सर है वहाँ पे, असिस्टेंट प्रोफेसर है साइकोलॉजी के, मैंने उनसे बात की. सर इज़ लाइक कि गीता मैं ना उन स्टूडेंट्स को देखता हूँ जिनको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करनी है एंड दैट वाज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मैंने सिर्फ कोरिलेशनल रिसर्चेस सुनी थी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जो कि स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ थी एंड यहाँ पर आईआईटीएंस डिफरेंट ही अप्रोच लेकर चल रहे हैं. मैंने स्टूडेंट से बात की, उनका टोटली डिफरेंट एक्सपोजर था, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस किए हुए हैं, उनकी लैब्स हैं, उनके पास फॉरेन जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनका एक्सपोजर था.
दैट वाज वेरी अमेजिंग। आईआईटी मंडी में भी सेम एक्सपीरियंस था, आईआईटी रोपड़ में भी, एंड उसके बाद ही मैंने आपको इंसिस्ट किया था कि पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग डेफिनेटली होनी चाहिए ह्यूमैनिटीज़ के लिए। और यूरोपीडिया ने वो इनिशिएटिव भी लिया है। कोई भी प्लेटफॉर्म मास्टर्स या पीएचडी के लिए गाइड नहीं करता आईआईटीज़ एनआईटीज़ के लिए, लेकिन यूरोपीडिया ने किया है। एंड ह्यूमैनिटीज़ अब यहाँ पर शुरू हुआ है। अगर आपने गेट एग्जाम दिया हुआ है, 6 सब्जेक्ट्स में गेट एग्जाम है, अगर आपने दिया हुआ है देन यू कैन टारगेट आईआईटीज़ एनआईटीज़। गेट एग्जाम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ यूजीसी नेट है, किसी भी डिसिप्लिन में है, यू कैन गो फॉर इट। फाइन आर्ट्स में मास्टर्स है आईआईटीज़ में, किसी बच्चे को नहीं पता होता। इकोनॉमिक्स में है, किसी को नहीं पता। अब डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ वर्ड ही ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए न्यू वर्ड है, तो किसी को नहीं पता, लेकिन आईआईटीज़ वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर। और इसी तरीके की जो गाइडेंस है ना सर, वो हम पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग में इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को भी पता चले कि कितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। That's true. So Geeta, that is right, because 2021 में we visited IIT Gandhinagar, Yes, sir. and there we met a professor of philosophy. Yes, sir. And that was the time where I realized cognitive science भी कोई चीज़ करके है और artificial intelligence पे भी लोग काम कर रहे हैं जो philosophy and psychology background के हैं. And we got late, no doubt, we got late in humanities. The reason was like we started going to the campuses, and then we realized कि humanities department है, इसमें क्या होता है? Exactly. When we are going mechanical engineering, civil engineering, तो why not economics also? And then we realized कि नहीं यार यहाँ पे भी equal चीज़ है. तो I request you to publish lot of videos on this, because sir. जो आपने बताया ना, awareness is the first stage actually. Exactly. बच्चों को पता तो हो कि ऐसा कुछ चीज़ है भी. तो we need to publish lot of videos on that, and accordingly we can go for it. Yes, sir. And now I think after this all discussion with the mentors, now I'm coming to our admission manager, Ishita. And Ishita, your task is the most important, and I believe arduous also, difficult also, because you have to deal with thousands of students, and you and your team has very very important task. क्योंकि जब स्टूडेंट पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग ले लेता है तो उसके बाद उसको ये होता है कि अब करना क्या है, कैसे करना है, ग्रीवेंसेस होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं. तो you will tell us, Ishita, what is the activities, how you do it, what are the main activities you and your team does. सो थैंक यू सर. तो पहली बात, मैं यूरोपीडिया की अगर बात करूं तो यूरोपीडिया के पास जो सबसे मतलब अच्छी स्ट्रेंथ है वो है उनका सपोर्ट सिस्टम. ठीक है, तो अगर मैं सपोर्ट सिस्टम की बात करूं तो पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग के बाद हमारे पास वी हैव मोर देन 1000 ऑफ स्टूडेंट्स. और हमारा जो रहता है वो ये रहता है कि एक भी ऐसा बच्चा ना हो जिसकी कोई भी क्वेरी ऐसी हो जो रह जाए, वेदर वो मेंटर से बात करना चाहता है, किसी भी से भी बात करना चाहता है, तो वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग. तो टॉकिंग अबाउट मी एंड माई टीम, तो हम मेजरली 4 डोमेन्स में काम करते हैं. तो अगर मैं पहले डोमेन की बात करूं वो है वी आर एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन दी मेंटर्स एंड दी स्टूडेंट्स. अगर मैं ये बात करूं तो अब मेंटर्स हैं हमारे पास, इनकी इतनी मेंटर्स की इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने के बाद आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स को ये होगा कि हमने इनसे बात करनी है, हमें अपनी भी स्टोरी इनको सुनानी है और इनसे अपनी भी स्टोरीज का सॉल्यूशन लेना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब सॉल्यूशन मिलेगा तभी आगे डिसीजन लोगे आप. तो अगर पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग के बाद मेंटर्स की बात है तो स्टूडेंट्स, अब मेंटर्स स्टूडेंट्स के साथ जो कनेक्ट करते हैं, तो वी आर हेयर की जो हमारे स्टूडेंट्स की छोटी से भी छोटी क्वेरी है वो एड्रेस हो और छोटी से छोटी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी हमारे स्टूडेंट्स के पास जाए. तो इसके लिए वी आर हेयर, हम यहाँ पे हैं कि हम मेंटर्स को डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स को डायरेक्टली मेंटर्स के साथ कनेक्ट कर सके. दूसरी अगर बात आती है हमारे पैनल की, तो ऑल्दो हमारा जो पैनल है उसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, लेकिन फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को पैनल चलाने में, पैनल के किसी भी फंक्शन में कोई भी इशू आता है या कुछ भी नहीं समझ में आता, वी आर एवरी टाइम वी आर हेयर. आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं, पैनल का कोई भी फंक्शन समझ सकते हैं, समझ ना भी आए दोबारा पूछो, बट देयर इज़ नो इशू. तीसरी बात रहती है हमारी डे टू डे इंटरेक्शंस की. वी ऑलवेज ट्राई कि हम स्टूडेंट से डेली कनेक्टेड रहे फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी न्यू अपडेट, फॉर एवरी न्यूज़, सारी चीज़ों के लिए. वेदर वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हो जहाँ पे डेली सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, आप मेंटर से भी कनेक्ट कर सकते हो, आप ग्रुप में कुछ भी पूछ सकते हो. दूसरी रहती है हमारी जूम इंटरेक्शंस. हम मेंटर्स के साथ स्टूडेंट्स को डेली जूम पे इंटरेक्ट कराते हैं, खुद भी करते हैं. अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन देने के लिए वो मेंटर से बात करना चाहें, वो मेंटर से बात भी कर सकते हैं जूम पे. मतलब उनकी जो भी इशू है, जो भी क्वेरी है, जो भी वो बात करना चाहते हैं, वो डायरेक्टली जूम पे मेंटर्स के साथ कर सकते हैं ऑनलाइन. तीसरा है हमारा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन. वो हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास सबके नंबर्स अवेलेबल रहते हैं, तो दे कैन कॉन्टैक्ट दी मेंटर्स एनी टाइम. उनको कोई भी चीज़ पूछनी है, उनको कोई गाइडेंस चाहिए, उनको कोई काउंसलिंग चाहिए, दे कैन कॉल अस, इवन दे कैन कॉल मेंटर्स विदाउट एनी डाउट. चौथी रहती है अगर इन सारी चीज़ों के बाद भी स्टूडेंट्स को कोई ग्रेवियंसेस हैं, उनको कोई इशू है, उनको कुछ
समझ नहीं आ रहा, वी आर ओपन फॉर दैट ऑल्सो. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो स्टूडेंट की यहाँ पे सुनी नहीं जाएगी, जिसका उसको सॉल्यूशन ही देगा. वी आर ओपन फॉर ईच एंड एवरीथिंग. यू कैन आस्क अस ईच एंड एवरी क्वेरी, बिकॉज अगर हम आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं मेंटर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, मेंटर्स के साथ बात करने के लिए, तो यार तो आप सब ओपन हो कुछ भी चीज़ पूछने के लिए, कुछ भी चीज़ बताने के लिए. वेदर यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग, यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, वी आर ओपन फॉर ईच एंड एवरीथिंग. सारे मेंटर्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को पूरी गाइडेंस देंगे. सो विदाउट एनी डाउट, बिना किसी हिचकिचाहट के आप कभी भी मेंटर से हमसे बात कर सकते हो. वी आर ऑलवेज ओपन फॉर यू. थैंक यू. Okay, so Ishita, you summarized everything, and that I think brings an end to this marathon session, I must say. Friends, let me tell you one thing. It was very challenging task for us to summarize all the things in I don't know how much is the length and duration of this entire discussion, but the mentors who are making marathons of 7 hours, उनको सबको इकट्ठा लाना और 1-2 घंटे के अंदर पोस्ट गेट काउंसलिंग जो हमारा मेन प्रोडक्ट है. योर पीडी हैज़ मैनी प्रोडक्ट्स, बट आई स्ट्रांगली बिलीव दिस प्रोडक्ट हैज़ मैक्सिमम एफिकेसी एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट था जिसके बारे में जब इसको लॉन्च किया गया था तो मेजॉरिटी लोगों ने बोला था कि ये बहुत टास्क डिफ़िकल्ट होने वाला है, बिकॉज इसमें आप बच्चों को कितनी जगह एडमिशन दिलाओगे और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दोगे, और एक स्टूडेंट्स के पास सो मैनी कन्फ्यूजन्स दे हैव एंड दे कम आउट विद सो मैनी क्वेरीज. आप सोचो हज़ारों में बच्चे और एक बच्चों के पास 1000 डाउट्स, तो कैसा होगा मेंटरिंग एंड काउंसलिंग. इट इज़ नॉट ईजी टास्क फ्रेंड्स. Now I end up this particular session, and I tell each one of you that if you are seriously thinking of exploring opportunities and option, so don't go for very mean thinking that I should not spend this much of money. You will agree with me that you spend 4,000-5,000 rupees on any particular eating things here and there. This is related to your career, and it will give you value for your money. I believe that you will open lot of options. हमने फॉरेन का डोमेन्स भी ओपन किए हैं, इंडिया के भी हैं. अपने टेबल के ऊपर ज़्यादा ऑप्शंस लेके आओ. ब्रिंग मोर ऑप्शंस ऑन योर टेबल. You should be the chooser, and you should not only explore 1 or 2 options, multiple options. With this, I end this particular session, and I thank all of you friends for your time, and I'm very sure this will help the students. Thank you all.